Hello, everybody. Welcome back to another introductory session on C programming. In the last session, we had a very basic introduction. We understood what programming languages are all about. We understood why one should invest learning C. Where does C stand today in the market? While a lot of people tell us C is outdated, old technology, you have to learn something new. We saw even today it's the second most popular language across the globe. Last 25 years or last 30 years, if you look at the ranking of various languages, and I had shared TOIB index with you, what we found was the poorest rank that C ever had was rank number 2, and even today it's second rank. It's either most popular or second most popular language in the world even today in terms of usage. It may not be in the forefront, but it has had tremendous impact on development of libraries of other languages as well. Python entirely is written in C language. Java native methods are written in C language. C++ took inspiration from C language. So C is everywhere. You like it, you don't like it, it's everywhere. And then after that, we started off with some history. But before we take a quick recap about history and proceed with the further discussion, let me just quickly raise your hand, those who are here for the first time. Is there anybody who is here for the first time? Please raise your hand. There are reactions over here using which you can raise your hand. Okay, so there is one, Nikhil. Anybody else? Okay, so others were there. Nikhil, what I would suggest you is, I have shared a mail with you, if you have seen the mail. With all of you, I have shared Aditya. Okay, there's two of them. I have shared a mail with you all in which I have shared the link to the last lecture itself. So you could watch the last lecture and you can prepare. Angad is also attending for the first time. Okay, so three of them attending for the first time. So no worries. We are still yet to start with C language. We are yet to start with C language. We are just discussing history. We understood how we are trying to understand which languages had. I'll just do a quick recap. Fastly, thoda jaldi chalenge. We'll do a quick recap about what we had discussed last time. I personally believe, and it's not for just like that, there is a reason. I personally believe the languages, the history has an impact as to why a particular language is so. ऐसा वो language क्यों है? Its answer we'll find in the history. So let's do a quick recap about what we had seen last time. We started with introduction of impetus, a very quick introduction I'll do, so don't have to worry. So those who were there last time, it's not much of revision. I introduced impetus. I said we started in 1999, and we are authorized training and certification center for a variety of technologies, right from PTC, C, C++, Python, all of them. We are authorized training center, and I'm Rishikesh, and I'll be delivering this training program for you. And then we jumped on for I am also a Java certified professional, and we started with languages. First, we understood what is a language. Then we understood it has nothing but a set of keywords. They are like the vocabulary of the language, and grammar, that's the syntax of the language, using which we create instructions which we fire to get the work done. It's not like a natural language like Marathi or Hindi. It's a machine language. So this is a language that is used to interact with the machine. And when we use the word machine in this course, we actually mean computer. तो हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे. So programming language does what? It defines vocabulary, set of words, commands, and set of grammatical rules, syntax, for instructing the computer to perform a specific task. So you want to get some work done from the machine, computer, you're not going to talk to the computer in Marathi or Tamil. You're going to talk to the computer in a program using a programming language. And every programming language will have its own vocabulary and own set of grammatical rules. Using that vocabulary and grammatical rules, you'll interact with that particular machine and get the work done. And I said there are so many different languages which are there in the market. Okay, and A to Z everything. Then we talked about Fortran. Does anybody remember what was the highlight of Fortran? That I have no, I'm not saying that at that time Fortran was the only language, but I have selected those language which had some impact on development of C language. So what was the
highlight of this language, Fortran? Why did we include this in the development of C language? What was the speciality of this language, Fortran? Anybody recollects? High level language. First, it was high level language. Right? Second, introduction or English like language. that itself means it's a high level language. Okay. Next. Protein मध्ये पहिला compile बनवला. Very correct. The first compiler ever was created over here. And we understood what is a compiler. Compiler is a software which will translate high-level language into low-level language. That means English-like language instructions into low-level format, which the machine will understand. So the first compiler was designed using this particular language. So it stands for formula translation, used for scientific and engineering communities. Actually, supercomputers by 1990s तक, this was the most predominantly used language. सबसे ज़्यादा कौन सा use किया जाता था language? तो ये था. In the field of supercomputers, this was the language. First high-level language, okay, and it was case sensitive. And पहला compiler दुनिया में बनाया गया तो ये Fortran के लिए था. So today we use almost in every language we use a compiler, and the first ever compiler was designed for Fortran. Machine invented after 1990. They also came with an object-oriented form of this particular language and so on. It was used in supercomputers. कब तक था popular? जब तक 1990 तक ये बहुत popular था. 1990s में कुछ हुआ, like mathematical support was provided in C language, and then Fortran was replaced with C language since 1990. And then we talk about IAL. किसी को full form याद है IAL का? International Algebraic Language. L क्या था? International algebraic language. International Algebraic Language. Okay, so what was special about this language? It was an original length for language ALGOL 58. Okay, but then the important thing about this IAL was it was for the first time international community, the industry and universities came together to create a language. It was not created by a single person, like जैसे Fortran एक अकेले बंदे ने बना दिया समझो. So that was not the case with IAL. It was an effort of an international community. A lot of people came together. A lot of different organizations came together to create this language, International Algebraic Language. International. There were representation from Cambridge University, Oxford University, London University. All those people came together to create this particular language. IBM, various companies came together, various industries came together and created this language called as IAL. When they were designing this language IAL, or which was later called as ALGOL, what was their intention? क्या सोच के बना रहे थे ये language? Yes, बोलो जल्दी. क्या उनके दिमाग में क्या ख्याल था? Strongly type language. That's okay, but the thought was, instead of having multiple languages carrying out different tasks, why not have one language that can carry out every task? So that was the basic idea, inspiration while creating ALGOL as a IAL, ALGOL as a language. ALGOL stands for algorithmic language. ALG algo and L for language. Yeah, algorithmic language ALGOL, ALGOL. That's algorithmic language. So it was a high level language again for scientific computing, not meant for business. It was designed to be an international. It was designed by international community to be a universal language. So instead of you learning multiple languages, it was thought क्यों ना एक ही language बनाए और उसी एक language से ही सारे काम कर ले. But what happened because of this particular thought? Yes, एक language सीखो और matter close. ये एक ही language सारे काम कर जाएगा. But that was an idea while this language was designed. But with this idea, what was the problem? Come on, आपने अगर notebook बनाया है तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा. उस समय बहुत आसान लगता है, but then later we don't understand. Yes, what was an idea? Come on यार, respond करो. इसका problem क्या हुआ? एक ही language सारे काम करेगा. So what was the problem because of this thought process? What happened because of this thought process? It becomes lengthy. It became quite bulky. The number of commands went on increasing to such an extent that it becomes difficult for you to learn the language. Programmers rejected this language altogether because there were so many commands in the language. इतने सारे commands याद कौन रखेगा?
Okay, but it had tremendous impact on development of future languages because designers of language understood, learned the lesson कि सब कुछ एक लैंग्वेज में डाल के कोई फायदा नहीं है. You may create a powerful language, you may create a language that is very good, but then it is difficult for somebody to learn, and if it's something is difficult to learn, nobody's going to use it. So if you don't use it, that language, however good it may be, is of no use. Okay, but then that was important learning. So as this language became was rejected, the designers understood difficulty that the programmers were facing. This language had too many commands. बहुत सारे commands थे, तो इतने सारे commands याद रखना मुश्किल है, तो सही जगह पे सही command use करना भी मुश्किल है. We took an example last time. I had asked a question to somebody to perform 3 different tasks. I asked him what's your native place, which college you come from, what is your qualification. Every time I was asking different question, the response was different. When I asked about college name, he gave me a different answer. When I asked about his age, he gave me a different answer. When I asked about his native city, he gave me a different answer. That means the command that I'm giving is forcing him to respond in a different way. It's not like I give the same command 3 times and he gives me 3 different answers. No. If I ask you what's your name, what's your age, what's your height, there will be 3 different answers that you're going to give me. But that means to get that information from you, I had to fire 3 different commands. And हर एक काम के लिए, if I have to ask Aditya to sit down, I let it say Aditya sit down. And if if I'm supposed to ask him to jump, I let it say jump, Aditya jump. I want Aditya to sleep, I let it say Aditya sleep. So jump, sleep, sit are 3 different commands that will get 3 different work done from Aditya. Assume Aditya is a machine. तो likewise कंप्यूटर से भी काम करवाना है तो एक कमांड से 4 अलग काम नहीं कर पाएंगे. हर एक अलग काम के लिए अलग कमांड चाहिए. So if you are designing a language that can do everything, so then number of commands which are there in the language became so many that it was difficult for programmer to learn the language. So this language was rejected by the developer. So this was very easily immediately understood कि programmers reject कर रहे, so they decided to streamline this language. Streamline का मतलब है इस language में से कई सारे features हटा दिए to create a subset of ALGOL, and this subset for ALGOL was called as CPL, Combined Procedural Language. So it was based on CPL, यानी it was based on ALGOL 60 with a pure functional subset, यानी ALGOL 60 का ये subset था. मैं कहता हूँ ALGOL 60 को इन्होंने streamline कर लिया, उसमें से जो कमांड ज्यादातर यूज नहीं किया जाते उनको हटा दिया गया, and they created a simplified version of ALGOL. उनको लगा ये simplified है, but that was also difficult for programmers to understand, use. It was designed at Cambridge University and University of London. दोनों ने मिलके language design किया था, but then that was also thought to be difficult. It was a strongly typed language. What do you mean by strongly typed language? इसका मतलब क्या, ये word हमेशा आएगा आपके सारे programming language में, strongly typed, not strongly typed, duck type, ऐसे ये word बार-बार आते रहेंगे. What is the explanation that I had given you to understand strongly typed language का मतलब क्या होता है? Yes, anybody? Every language has ability to identify different type of data. Correct. So that's data type. So what is a strongly type? Only a single type of data is stored in a particular type of container or something like that. Variable. Container is also the right word. So if I create, that's very correct, Aditya. If I create a variable of a particular type, container of a particular type, उसमें जिस type का वो container है, उसमें उसी type की value store कर पाएंगे. अगर उसमें mismatch है between the type of the variable and the type of the value that we are trying to store inside that variable, अगर उसमें mismatch है, तो it will generate an error. ये होता है strongly type. That means Hashiba said it has the ability to differentiate between different types of data. उसको image और video और audio या text इसमें difference पता चलेगा. Number क्या है, ये क्या है, string क्या है, difference पता चलेगा. But अगर आपने कोई variable बनाया to store number, तो उसमें number ही store कर पाएंगे, उसमें text नहीं store कर पाएंगे. If you try and do that, अगर मैंने कोई variable बनाया to store complex number और उसमें अगर आपने whole number store किए, या फिर अगर आपने कोई variable बनाया to store whole number और उसमें complex number store करने की कोशिश की, it will generate an error. जिस काम के लिए वो वेरिएबल बनाया है उसमें उसी टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. एक कंटेनर है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर. तो आपका टी का कप है तो उसमें टी डालना है, उसमें दूध नहीं डालना, उसमें पानी डालना है, समथिंग लाइक दैट. तो इफ आई क्रिएटेड अ कंटेनर ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, उसमें उसी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दूसरी टाइप की वैल्यू स्टोर करना अलाउड नहीं है. दैट्स स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. टुडेज वर्ल्ड, जावा इज अनदर स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज दैट इज देयर. It was implemented on a machine called as Titan, but since this language was also found to be difficult, came in a new language called as BCPL. तो ये B क्या था?
कौन, ये बी क्या था? सीपीएल तो ठीक है, कंबाइंड प्रोसीजरल लैंग्वेज। बी क्या बेसिक था? बेसिक, वेरी करेक्ट, दैट वाज बेसिक सीपीएल। यानी उन्होंने सीपीएल को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। नाउ टू सिंप्लीफाई करेंगे मतलब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कमांड्स रिड्यूस करने की कोशिश की। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कमांड्स, किसी को याद है उन्होंने क्या किया? रिमेंबर्स? की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। टाइपलेस Typeless, very good Aditya. It was made typeless. What do you mean by typeless? opposite of strongly typed. No. It's not opposite of standard. It's opposite of what Hashiba said. Hashiba ने कहा the languages have ability to differentiate between different types of data. अलग अलग टाइप के डेटा को वो डिफरेंशिएट कर सकता है, उसको डिफरेंस पता चल सकता है, ये स्ट्रिंग है, ये टेक्स्ट है, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट नहीं बट अल्फा न्यूमेरिक है, ये डिफरेंस पता कर सकता है। ये उसके पास एबिलिटी है। टाइपलेस में डेट टाइप नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसके लिए कंटेनर इज अ कंटेनर, और जो मन में आए वैल्यू उसको स्टोर करो। फिर आप कहोगे अपोजिट भी सही है, नहीं है, क्यों बताता हूं मैं एज आई गो हेड। इट इज अ टाइपलेस, दिस मींस इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स ही नहीं है। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। दिस लैंग्वेज कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो इसके लिए इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स का वेरिएबल, ऐसा नहीं, वेरिएबल एक कंटेनर, आपको जो मन में आए उसके अंदर स्टोर करो। इट इज ओके विद दैट, इट हैज नो प्रॉब्लम। इट इज अ टाइपलेस लैंग्वेज, इट डज नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन इफ आई से आई लव यू एंड इफ आई से 147, उसको 147 और आई लव यू में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। उसके लिए दोनों भी डेटा ही है। मैंने आपका फोटो स्टोर किया तो भी डेटा, मैंने आपका आवाज स्टोर किया तो भी डेटा, मैंने 1 2 3 4 स्टोर किया तो भी डेटा, मैंने एबीसीडी स्टोर किया तो भी डेटा। उसके लिए डेटा इज डेटा, फिनिश्ड। इट डज नॉट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इससे प्रॉब्लम आ जाता है। दैट मीन्स इफ आई एम कैरिंग आउट एन ऑपरेशन, मैंने कहा ए प्लस बी का मतलब हमारे दिमाग में एडिशन कर रहे हैं, बट ए प्लस बी में ए और बी, अगर इफ इट्स अ डेटा ऑफ टाइप, या ए इंटू बी आपके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट ए और बी में समझे ए में अनिल है और बी में कपूर है, तो क्या अनिल को कपूर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? दैट्स इलीगल। बट ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप प्रोग्राम रन नहीं करते हो। टिल दैट टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड वो ऑपरेशन लीगल है या इलीगल है। Now to know whether the operation is legal or illegal, we'll have to wait till the time we run the program. जब प्रोग्राम रन करेंगे, जब वेरिएबल में वो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पे वो ऑपरेशन कर सकते हैं कि नहीं बाद में पता चलेगा। So this language has create lot of problem because they cannot differentiate between different types of data. And so beforehand at compile time we cannot identify whether this expression is right or whether this expression is wrong. अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स है और आपने कहा फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू सेकंड स्ट्रिंग सी में या सीपीएल में कहा, वो इमीडिएटली बोलेगा स्ट्रिंग कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज ये टाइप स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडिया माइनस पाकिस्तान इज इक्वल टू समथिंग एल्स, नो दैट्स नॉट गोना हैपन। इट्स इलीगल ऑपरेशन टू परफॉर्म। Okay, that's an illegal. How did it know it's an illegal operation? Because data type tells us that information. Data type पे हमें बताता है कि ऐसे टाइप पे डेटा पे आप क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हो। तो जहां डेटा टाइप की जानकारी उस लैंग्वेज के पास नहीं है, तो वो कैसे बताएगा कि आपका ऑपरेशन सही है गलत है। सो दिस वाज अ टाइपलेस लैंग्वेज दैट वाज क्रिएटेड। टाइपलेस लैंग्वेज, इट वाज अगेन क्रिएटेड बाय मार्टिन रिचर्ड्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक ही जगह पे 1967 के आसपास एक क्रिएट हुआ। And strings awkward routine. Now these are all details, we can keep this thing aside. Important thing था ये था typeless language. I think we had come till here. यही तक हमने डिस्कस किया था। Yes, sir. Okay. Now we had discussed the aspects till here. अब मेरा आपके पास कोई और एक क्वेश्चन रहेगा, and you may be wondering मैं ऐसा क्वेश्चन बीच में ही क्यों पूछ रहा हूँ। Okay. But there is a reason why I'm going to ask you another question. There are various things that we work on. Today, when you want to get your work done, so you have a computer. Now, when you have a computer, to get a work done from your computer is an electromechanical device. इसमें electronics और इसमें mechanical components भी है. It's a electromechanical device. Now you tell me, how do you get the work done from your computer today? क्या आपको प्रोग्रामिंग जानना जरूरी होता है to get some work done from the computer? Yes? No. तो आप कैसे काम करवाते हैं अपने कंप्यूटर से? आपको पेन ड्राइव में एक फाइल कॉपी करवाना है, कैसे करवाते कॉपी? आप कैसे करते हैं? वो कौन करके देता है आपको?
आपने तो प्रोग्रामिंग नहीं आता है, आपने प्रोग्रामिंग नहीं लिखा है, प्रोग्राम नहीं लिखा है टू गेट दैट वर्क डन, तो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क, और Sir, हाउ डू हाँ someone has designed an app ओके for itself him, so other can do their work without knowing the programming language. करेक्ट, सो दे कैन यूज दोज एप्स, करेक्ट। तो मैं आपको कल एक लैपटॉप देता हूँ, ओके, एकदम नया खरीद के लैपटॉप देता हूँ, और उसमें एक भी ऐप नहीं है, तो क्या कर पाएंगे, उस लैपटॉप को स्टार्ट कर पाएंगे? बोलो, लैपटॉप दिया नया खरीद के, एक भी ऐप नहीं डाला मैंने, तो क्या आप लैपटॉप को यूज कर पाएंगे? यस और नो? बोलो यार जल्दी से, कॉमन जनरल क्वेश्चन है, कोई भी बात कर सकता है, रादर एवरीबॉडी शुड आंसर। देखो कई लोग है ना प्रोग्रामर कहते हैं खुद को, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक स्टफ, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, बिकॉज इन सब का रिलेशन है प्रोग्रामिंग से, अपने सी प्रोग्रामिंग से, इन सारी बातों का रिलेशन है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं यूज तब भी। कैसे कर सकते हैं गौरव, बताइए। अगर जैसे और उसमें मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो जैसे वो मैं डाल सकता हूँ, फिर काम करने लगेगा। एक मिनट, अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डाले आप कर सकते हैं कुछ काम? मैंने कहा एक प्लेन मशीन देके दिया है मैंने आपको, तो आपके पास एक हार्डवेयर है, क्या उससे कोई काम करवा सकते हैं आप? नहीं, तब तो मुश्किल है। मुश्किल है, करेक्ट। तो आपने क्या उस पर डाला? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्यों डाला आपने? क्यों ना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ऐप ही डाल दो, एक गेम ही डाल दो गौरव? उसको जैसे गेम भी डालने के लिए कोई इन्वायरमेंट चाहिए ना, बिना उसके कैसे चलेगा? बिना उसके कैसे चलेगा? विदाउट दैट एनवायरनमेंट कैसे चलेगा? नाउ माय क्वेश्चन टू इज, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या वो एक हार्डवेयर का चिप है? क्या वो सॉफ्टवेयर है? Software. सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स कैन बी कॉल्ड एज एन ओएस? अपना क्वेश्चन, और इसका बहुत क्लोज रिलेशन है सी लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज एन So ओएस? system software. इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो तो हो गया कैटेगरी, वो तो हो गया कैटेगरी। मैंने कहा मेरे पास पेन ब्रश है, देखो ये ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको पेन ब्रश, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? ये मेरे पास पेंट 3D है, आई होप यू कैन सी दिस, दिखाई दे रहा है मैंने ओपन किया है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो मैंने ऐसा कुछ टाइप किया, तो क्या ये पेंट 3D जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? इज दिस एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? या जो पावर पॉइंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? No, sir. नो, क्यों नहीं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन बोलो? Windows OS. करेक्ट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने कहा विंडोज, ओके, ये एक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, मैक है, सोलारिस है, उबंटू है, अरे हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS2 है, भारत है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर देयर। भारत OS है, देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर देयर। तो लेट मी rephrase my question, what software can you categorize as an operating system software? कौन से सॉफ्टवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं? मेरे पास समझो कौन सा प्रिंस नहीं, क्या आप खेलते हो गेम ऑफ थॉर्न्स, या जो जो भी खेलते हैं आप गेम्स, कोई गेम का नाम बताओ। पबजी। कौन सा? पबजी। पबजी, तो पबजी ओएस है क्या? पबजी नहीं, ओएस नहीं है। पबजी हार्डवेयर है क्या? नहीं। तो पबजी भी सॉफ्टवेयर है और विंडोज भी सॉफ्टवेयर है, तो हाँ। कौन से विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हो और पबजी को नहीं कह रहे? तो विंडोज को क्यों आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हो? वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से आप उसे ओएस कह सकते हो? एनीबॉडी? वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक तरीके से मैनेज करते हैं। हार्डवेयर को मैनेज करता है, वेरी करेक्ट। हाँ। हार्डवेयर को मैनेज करता है मतलब सारे हार्डवेयर को मैनेज करने वाले करना चाहिए, उसने आने चाहिए, उसे करने आना चाहिए। सिर्फ हार्डवेयर मैनेज करना यही काम है ओएस का? अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वो हार्डवेयर को मैनेज कर सकता है, कैन आई कैटेगराइज एंड कैन आई कॉल इट एज एन ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। यूजर को सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, म्हणजे असं मला चिटको तो ओएसला कनेक्ट करता है, मतलब क्या करता है? तो गेम आपको कनेक्ट नहीं करता है मशीन के साथ?
It is PUBG में interface between user and system. तो पबजी खेलते समय पबजी वो सॉफ्टवेयर वो भी तो एक इंटरफेस है ना आपके और उस मशीन के बीच में, या ये नहीं? सोचो, बिकॉज देखिए आप प्रोग्रामर बनने वाले हो, कोडिंग ऐसे ही नहीं होता है सिर्फ सी का सिंटैक्स सीख लिया उससे कोई फायदा नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं, वो हमें समझ में आ रहा है। क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, जो कर रहे हैं उसमें हमारे दिमाग में ऐसे डाउट्स नहीं चाहिए, और सिर्फ डेफिनेशन लेके नहीं चलेगा। लुक, यू आर प्लेइंग पबजी, बट पबजी इज अ सॉफ्टवेयर और उसे भी रन करना है। अब उस सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो रन करने के लिए गौरव ने कहा कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए। ये एनवायरनमेंट चाहिए मतलब क्या चाहिए, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स योर हार्डवेयर रन। किसी ने कहा सर हार्डवेयर को मैनेज करेगा। नाउ व्हाट सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज एन ओएस? आपका सॉफ्टवेयर हजारों काम करता रहे इसलिए उसको ओएस नहीं कह सकते। अगर वो सिर्फ 2 काम भी करे ना, वी कैन कैटेगराइज इट एज ओएस। और वो 2 काम कौन से हैं? फॉर एनी सॉफ्टवेयर टू बी कैटेगराइज्ड एज ओएस, नोट करके रखो। वन इज फाइल मैनेजमेंट, अनदर इज मेमोरी मैनेजमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ये 2 काम कर ले, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, यू कैन सेफली कैटेगराइज इट एज एन ओएस। उसे आप ओएस कह सकते हो, भले वो तीसरा कोई काम ना करे, सिर्फ 2 काम करे तो भी उसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज ओएस। फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट, 2 काम करना जरूरी है फॉर एनी सॉफ्टवेयर टू बी कॉल्ड एज ओएस। इसमें से एक भी काम नहीं किया, इट इज नॉट एन ओएस। 1000 बाकी काम करे कोई फायदा नहीं, 2 काम करना जरूरी है, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो व्हेन आई यूज द वर्ड फाइल मैनेजमेंट, व्हाट कम्स टू योर माइंड? आपके दिमाग में क्या आता है जब मैं फाइल मैनेजमेंट कहता हूं? बोलो बोलो जल्दी, चलो एवरीबॉडी शुड इंटरेक्ट। चलो बोलो जल्दी। फाइल ट्रांसफर करना वन इनटू अनदर। ओके, फाइल ट्रांसफर, फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल ट्रांसफर करना वन इनटू अनदर। ओके, गुड File अटेम्प्ट। open, file close. लाउडर। File open, file close. फाइल ओपन, फाइल क्लोज। ओके, एक ने कहा ट्रांसफर करो, एक ने कहा ओपन और क्लोज करो, फाइल को ओपन क्लोज करो। और To store data. टू स्टोर डेटा। ओके, टू स्टोर डेटा। ओके, यानी फाइल मैनेजमेंट कहने पर आपका घूम घूम के आप उस फाइल की तरफ जा रहे हैं जिसमें आप फाइल क्रिएट करते हो, उसमें राइट करते हो, उसको क्लोज करते हो, या इसे रीड करते हो, या कॉपी करते हो, या डिलीट करते हो। यही दिमाग में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना बोलो जल्दी, हमें समझना चाहिए। Yes. Okay, so if that is what comes to your mind, that is not wrong, but that's a very narrow view of the word file management. In the context of OS, file management has a wide meaning. The word file, Akash, word file stands for? तुम OS वाचता है ना? यस सर। So in the context of OS, what does the word file stand for? Okay, the word file, जब फाइल कहते हैं ना तो हमारे दिमाग में डेटा स्टोर करते हैं ना, वो फाइल है मेरी हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव पे रखा वो फाइल है, यहाँ से वहां कॉपी करके गए वो फाइल है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओएस, द वर्ड फाइल हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। फाइल मीन्स डिवाइस। तो फाइल मैनेजमेंट मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट। ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू योर मशीन, उनको मैनेज करना। किसी ने कहा था कंट्रोलिंग द हार्डवेयर, तो जो सारे डिवाइसेस है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो आपके मशीन के साथ कनेक्टेड है, उन सबको मैनेज करना, ये टास्क होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो द वर्ड फाइल हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। फाइल स्टैंड्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये फाइल मतलब, फाइल मैनेजमेंट मतलब डिवाइस मैनेजमेंट। नोट करके रहो। ओएस के कॉन्टेक्स्ट में, डेटाबेस में फाइल इज अ डिफरेंट थिंग। ओएस के कॉन्टेक्स्ट में द वर्ड फाइल मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट, मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, interacting with all the devices that are connected to your machine, all the peripheral devices that are connected. कीबोर्ड हो, ये फाइल है, सॉरी ये माउस है, फाइल है। कीबोर्ड है, ये भी एक फाइल है। ये मेरा माइक है, ये भी एक फाइल है। तो ऑल दीज थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू योर मशीन, उन सब के साथ इंटरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारी डिवाइस, एवरी डिवाइस इज अ फाइल। इवन द मॉनिटर इज अ फाइल, कीबोर्ड इज अ फाइल, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो अ फाइल। तो एवरी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू योर मशीन, पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्ड डिस्क पेरिफेरल है, डिवाइसेस है क्या? कुछ गलत कहा क्या मैंने? ऐसे ही कहा? हार्ड डिस्क पेरिफेरल डिवाइस है क्या? नाही। नाही। हार्ड डिस्क कसला डिवाइस आहे? पेरिफेरल नाही तर कसला आहे मग? इंटरनल आहे का एक्सटर्नल आहे? इंटरनल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस आहे, म्हणजे हार्ड डिस्क नसेल तर मशीन काम करेल का कम्प्युटर? नाही।
इट कैन वर्क. हार्ड डिस्क इज अ पेरिफेरल डिवाइस. कंप्यूटर को कंप्यूटर कहने के लिए उसमें हार्ड डिस्क होने की कोई जरूरत नहीं है. रादर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्रामिंग, व्हेन आई लर्न सी लैंग्वेज, तब मार्केट में हार्ड डिस्क नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. एंड वी स्टिल लर्न सी लैंग्वेज, आई स्टिल लर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क था ही नहीं. तो हार्ड डिस्क का होना कोई जरूरी नहीं होता है. हार्ड डिस्क इज अ पेरिफेरल डिवाइस. और उतना ज्यादा यूज करते हैं हम लोग आजकल हार्ड डिस्क का कि वो मशीन के अंदर रखा गया है. बट हार्ड डिस्क का होना कोई जरूरी नहीं है. विदाउट हार्ड डिस्क ऑल्सो आई कैन स्टार्ट माई मशीन. बिलीव मी, आई कैन बूट फ्रॉम अ नेटवर्क. बिना हार्ड डिस्क के मशीन को भी बूट किया जा सकता है, मशीन स्टार्ट किया जा सकता है, पेन ड्राइव लगा के भी स्टार्ट किया जा सकता है, नेटवर्क से भी स्टार्ट किया जा सकता है. हार्ड डिस्क का होना कोई जरूरी नहीं है for a machine to be for a computer to be called as computer without hard disk. Hard disk is also peripheral device, but so widely used. आजकल के OS इतने बड़े हैं कि उनको हार्ड डिस्क पे रखा जाता है. कोई जरूरी नहीं है कि हार्ड डिस्क का हो. हार्ड डिस्क इज अ पेरिफेरल डिवाइस. देखो अब ये नोट करके रखो, नहीं तो हम लोग पेरिफेरल कहेंगे तो लगता है कि मशीन के बाहर जो रखे ना वही सारे पेरिफेरल डिवाइसेस है. कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक, स्पीकर, माउस, ये यही सारे पेरिफेरल डिवाइस है. हार्ड डिस्क इज ऑल्सो पेरिफेरल डिवाइस. एंड कोई आपको नहीं कहता है तो उनको समझाओ हार्ड डिस्क का होना जरूरी नहीं है फॉर मशीन टू वर्क. बिना हार्ड डिस्क के भी हम लोग कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं. वी कैन वर्क विद अ कंप्यूटर विदाउट हार्ड डिस्क. गलत लगता है तो बोलो, पूछो कि सर क्या बकवास कर रहे हैं आप. वी कैन टॉक मोर अबाउट इट. तो हार्ड डिस्क का होना कोई जरूरी नहीं. हार्ड डिस्क इज अ पेरिफेरल डिवाइस. तो ये सारे डिवाइस, तो आपने क्या कहा था, काम क्या कहते सर, डेटा राइट करना है. हार्ड डिस्क पे राइट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. डेटा रीड करना है. रीड करने के लिए मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए. सर डेटा सेव करना है तो टाइप भी तो करोगे, कीबोर्ड से टाइप करो तो कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, इन सारे डिवाइसेस को हैंडल करना ये ओएस का काम है टू गेट दैट वर्क डन. तो इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद वेरियस डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू अ मशीन, तो इन दैट केस व्हाट वी नीड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट वो फाइल मैनेजमेंट हो गया. और दूसरा मैंने यूज किया वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट. तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी यूज द वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट. चलो अभी फाइल मैनेजमेंट तो आप कई अच्छा आंसर दिया, बट वो लिमिटेड डेफिनेशन दिया. आई जस्ट ब्रॉडन द स्कोप. आपके हिसाब से फाइल था वो जिसमें आप रीड राइट कर सकते हो, और मैं कहता हूँ प्रिंटर भी एक फाइल है जिसमें आप प्रिंट कर सकते हैं. मॉनिटर भी एक फाइल है जिसपे आप डिस्प्ले कर सकते हैं. कीबोर्ड भी एक फाइल है जहां से डेटा आप रीड कर सकते हो. स्पीकर भी एक फाइल है जहां से आवाज बाहर निकलती है. माइक भी एक फाइल है जिसमें से इनपुट कैप्चर किया जा सकता है. एवरीथिंग इज फाइल. सिंपल वर्ड, द वर्ड फाइल स्टैंड्स फॉर डिवाइस. तो कोई कहता है फाइल मैनेजमेंट तो वो है डिवाइस मैनेजमेंट. यानी फाइल मैनेजमेंट का मतलब है डिवाइस मैनेजमेंट. आप सोचते रहोगे यार ये सी पढ़ने आए हैं या ओएस पढ़ने आए हैं. यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट लेट मी टेल यू, अभी सी की तरफ ही जा रहे हैं तो ये जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज सी का इसके साथ कुछ गहरा रिश्ता है. देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बिटवीन सी एंड दिस डिस्कशन दैट वी आर हैविंग. सेकंड मैंने कहा मेमोरी मैनेजमेंट. तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू यूज द वर्ड मेमोरी मैनेजमेंट. बोलो जल्दी. द सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या, विंडोज खुद एक सॉफ्टवेयर है तो वो मेमोरी मैनेज करता है. इसका मतलब क्या है, वो ओएस है. एंड मैंने कहा फॉर एनी सॉफ्टवेयर टू बी कॉल्ड एज ओएस इट शुड डू टू टास्क, फाइल मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट. तो फाइल मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है. Primitive machine. लाउडर. Primitive machine. रन है. Collection of data. लाउडर. Collection of data कलेक्शन ऑफ डेटा. in a नहीं. format. No. रन एप्स. रन एप्स. किसने कहा रन एप्स. सर निखिल. निखिल हैज सेड रन एप्स. तो निखिल यू आर वेरी करेक्ट, बट रन एप्स मतलब क्या, रन का मतलब क्या है, रन कैसे होता है. सर बैकग्राउंड में मतलब ये अभी जैसे हम जूम चला रहे, करेक्ट. क्रोम वगैरह चलाते, करेक्ट. वैसे ही वो रन ही हो रहा है ना. Okay, let me explain that more further. Okay. For any application to run, it requires some resource. तो एप्लीकेशन ऐसे हवा में रन नहीं करते. एप्लीकेशन को रन करने के लिए कुछ चाहिए होता है. लेट मी शो यू. आपने कहा सर आप जूम रन कर रहे हो, वेरी करेक्ट. मैंने पावर पॉइंट रन कर रहा हूँ, वेरी करेक्ट. ये सब कुछ चीजें हम लोग रन कर रहे हैं, दैट्स वेरी करेक्ट. बट अभी ये एप्लीकेशन चालू है, जूम भी चालू है और पावर पॉइंट भी चालू है. कैन यू सी दिस, पावर पॉइंट इज ऑल्सो रनिंग. अब इसको मिनिमाइज कहाँ से करूँ यार. ओके, ये मिनिमाइज कर लिया. कैन यू सी द डेस्कटॉप एवरीबॉडी. Yes, sir. ओके, तो यहाँ जूम भी चालू है, ये जूम भी चालू है, और यहाँ पावर पॉइंट भी चालू है. यस और नो. Yes. बट इफ आई डू कंट्रोल आल्ट डेल, टास्क मैनेजर में आते हैं, यहाँ आके देखते हो तो यहाँ बता रहा है पावर पॉइंट चालू है, जूम चालू है. कैन यू सी दैट, टास्क मैनेजर चालू है, और मेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रनिंग है, कैलकुलेटर चालू है. कैन यू सी ऑल दिस थिंग्स.
Yes, sir. ओके, इसके साथ साथ इस साइड देखो कुछ और दिखाई दे रहा है। हर एक जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसके लिए कोई मेमोरी यूटिलाइज की जा रहा है। मेमोरी बता रहा है पावर पॉइंट इज यूटिलाइजिंग सो मच ऑफ मेमोरी, और पावर पॉइंट अभी मिनिमाइज किया है इसलिए उसका सीपीयू कंजम्पशन 0 है। ये स्क्रीन मैग्नीफायर जिससे मैं अभी आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहा हूँ उसने 18 MB स्पेस लिया है और इसका 2 या 4% ऑफ सीपीयू टाइम ले रहा है। टास्क मैनेजर इसने 1.8% ऑफ द सीपीयू टाइम सीपीयू लिया, यानी 42% ऑफ माय सीपीयू प्रोसेसर इज यूज्ड एंड 50% ऑफ माय मेमोरी इज यूज्ड। और जो जूम मीटिंग जो चालू है उसने सबसे ज्यादा लोड अभी फिलहाल मेरे मशीन पे जूम का है। 25% ऑफ द प्रोसेसर पावर इज यूज्ड बाय जूम एंड 390 MB शायद सबसे ज्यादा अभी फिलहाल जूम यूज कर रहा है। कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो ये जब मेमोरी कह रहे हैं ये किस कौन मेमोरी मतलब ये क्या है, किसी को मालूम है ये मेमोरी क्या दिखा रहा है? रैम। रैम, वेरी करेक्ट। ये हार्ड डिस्क नहीं है, दिस इज अबाउट रैम। तो एंड लुक एट द मेमोरी, हर एक एप्लीकेशन कोई ना कोई अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा है। जूम जब मेरा 19 MB ले रहा है तो जूम मीटिंग यहाँ 390 MB ले रहा है। एंटीवायरस में एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर मेरा 135 MB ले रहा है। पावर पॉइंट 122 MB ले रहा है एंड सो ऑन। पॉइंट इज every application that you're running requires some memory, and this memory is not the primary, is not the secondary memory that is hard disk या pen drive की memory की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये RAM की बात कर रहे हैं। RAM is internal memory, यानी वो random access memory है, CPU के अंदर वो memory है, प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर मतलब नहीं, मशीन के अंदर वो memory है। It is something called as primary memory. It is an area, working area for your application. किसी ने कहा सर एप्लीकेशन रन करते हैं, रन करते हैं मतलब क्या है? उस मेमोरी पे कोई जगह उसके लिए एलोकेट की जाती है। आपने देखा वो 190 MB, 390 MB, 25 MB, 19 MB उतनी मेमोरी दी जाती है। दैट बिकम्स द वर्किंग एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर रन करना है, अनलेस एंड अनटिल दैट एप्लीकेशन इज मेड और गिवन सम स्पेस ऑन द रैम, एप्लीकेशन विल नेवर रन। तो अगर आपके पेन ड्राइव पे आपने दोस्त से गेम लेकर आए और आपने कहा सर मैंने गेम रन कर लिया पेन ड्राइव से, गलत। पेन ड्राइव से गेम कभी रन नहीं हो सकता है। व्हाई? Because for a program to run, you are not going to run the program. It's a CPU which is going to run the program. Run का मतलब होता है उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो वो आपके मशीन का CPU है जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और इंस्ट्रक्शंस किस में होते हैं? प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए? रैम में होना चाहिए। CPU works on a principle. CPU fetches the instructions from the RAM and then executes. तो जिसने भी आप जितनी बार भी जिंदगी में ये टर्म यूज कर रहे हैं, मैंने एप्लीकेशन रन किया। रन किया मतलब क्या? आपने ओएस को रिक्वेस्ट भेजा डबल क्लिक करके, इस एप्लीकेशन को रन करने में मुझे हेल्प कर। ओएस ने उस एप्लीकेशन को रैम में लोड कर लिया। वंस दैट एप्लीकेशन इज लोडेड इन द रैम, लोड करने के लिए उसके लिए जगह एलोकेट की रैम के अंदर, और फिर सीपीयू को कहा इस प्रोग्राम के अंदर के इंस्ट्रक्शंस तू एग्जीक्यूट कर। तो सीपीयू वहां गया, उसके अंदर के प्रोग्राम के अंदर के एक एक करते हुए सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर लिए और वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। मोमेंट द एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम इज ओवर, वो जो एरिया उसको रैम में दिया था उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं तो वो एरिया खाली हो जाना चाहिए। जैसे अगर वो मेरा पावर पॉइंट चालू है, पावर पॉइंट वाज टेकिंग 90 MB, अगर मैं पावर पॉइंट क्लोज कर दूं तो जो डिस्क यूसेज रैम में यूसेज था वो 0 हो जाना चाहिए, यानी वो मेमोरी फ्री कर देनी चाहिए। यानी अगर आकाश को कोई प्रोग्राम रन करना है तो वो ओएस को रिक्वेस्ट करेगा ये मुझे प्रोग्राम रन करना है, तो ओएस क्या करेगा? उस प्रोग्राम के लिए रैम में स्पेस अवेलेबल करके देगा। फिर उस प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में, रैम में लोड करेगा, उस एरिया में लोड करेगा। सीपीयू को बताएगा कि ये प्रोग्राम रेडी है फॉर एग्जीक्यूशन। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एक एक करते हुए सारे एग्जीक्यूट करेगा, यानी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। और जब सारा एग्जीक्यूट करके हो गया, खत्म हो गया, वो जो एरिया आपके लिए रिजर्व करके दिया था आपके प्रोग्राम के लिए, आकाश के प्रोग्राम के लिए, वो फ्री किया जाएगा ताकि वो एरिया किसी और काम के लिए यूटिलाइज किया जा सके। Have you all understood this process of running a program? जब हम लोग कहते हैं प्रोग्राम रन करते हैं यानी क्या करते हैं, क्या आपको समझ में आया क्या? क्विक फीडबैक एवरीबॉडी। और नहीं आया तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे एज वेल। क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्विक फीडबैक, बताइए समझ में आया क्या है प्रोसेस? रनिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन यू यूज द वर्ड, सो कॉमनली वी यूज द टर्म कॉल्ड एज रनिंग। सर मैंने ये रन कर लिया। रन किया मतलब क्या किया? और आपने रन नहीं किया, ओएस ने रन किया। कम ऑन, क्विक फीडबैक। फीडबैक कैसे देना है? अगर समझ में आया तो टिक करना है, नहीं आया तो क्रॉस करना है। आइदर फीडबैक चाहिए, टिक या क्रॉस, कुछ तो चाहिए। टिक दैट यू अंडरस्टूड, इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड पुट अ क्रॉस एंड डोंट हेजिटेट। इफ इट मे यू आर हियरिंग प्रॉब्ली दिस थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आप में से किसी लोग को पता रहेगा, बट आई डाउट, बिकॉज कॉलेज में से पढ़ाया नहीं जाता है।
डायरेक्टली कोड लिख देते हैं और ये रन हो गया। रन हुआ मतलब क्या हुआ रे बाबा? तो ये जानना क्यों जरूरी है, उसका आंसर अभी आपको मिलेगा। व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट्स? चलो, एवरीबॉडी हैज टू गिव फीडबैक। आदित्य, आकाश, हसीबा, महक, अरे टिक मार्क ही करो, ऐसा नहीं क्रॉस किया तो भी चलेगा, बट फीडबैक चाहिए। समझ में आया नहीं सर आया? त्यांना ते सापडत नाही सर रिॲक्शन तिथे अच्छा, टिक करायचं. तो अगर आपका मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़िएगा, तब नीचे आपको रिएक्शन, ये क्या चालू है? मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़िएगा तो नीचे रिएक्शंस आ जाएगा जूम में, एंड वंस यू गेट दैट रिएक्शन फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं जो भी रहेगा। सपोज आई हैव स्टार्टेड विद जूम मीटिंग, आई कैन नॉट स्टार्ट ऑन 2 डिवाइसेस। ऐसा हॉरिजॉन्टल पकड़ो, नीचे रिएक्शंस आ जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा मेरा। इन प्रोग्रेस मीटिंग स्विच नहीं कर सकता हूँ मैं। ओके, तो नीचे रिएक्शन आ जाएगा और रिएक्शन से आप क्लिक कर सकते हैं। कम ऑन, एवरीबॉडी हैज टू गिव योर फीडबैक। ऐसे नहीं चलेगा। निकिता, क्या प्रॉब्लम है? मानसी, मंदार, महक, क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या आपको रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है या क्या है? बट फीडबैक दो, यस नो, कुछ तो फीडबैक दो। आदित्य, जब रेगुलर अपने बैच शुरू हो जाएगी, जो रिएक्शन नहीं देता है, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप वीडियो लगा के सो गए, तो आपको मीटिंग में से मैं निकाल देता हूँ, और जो है रहेंगे, जो those who are listening, they have to respond. Okay, मंदार काय डाउट है विचारा था? मंदार is said he is not understood. क्या डाउट है मंदार? मंदार, unmute yourself. You have permission to unmute yourself. Unmute yourself and ask a question. काय डाउट है? तर ते मधलं नाही समजलं. काय? Yes, ask a question ना. मंदार, ask a question. क्या नहीं समझ में आया पूछो. सर ते फाईलचंच. काय अरे सांगा ना, पण फाईलचं काय? मग काय कळालं नाही मला विचारलं तर आय एम देअर टू एक्सप्लेन यू एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बट यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर. का सांगतोय तुम्हाला? यू आर गोइंग टू बी अ प्रोग्रामर, and when you talk to your client, you have to be very clear, explicit about what are you, how you communicate. तर हे फार छोट्या गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजेत. स्पेसिफिकली विचारलं पाहिजे तुम्हाला, काय मला फाईलचं ते नाही कळालं. ते नाही कळालं म्हणजे काय नाही कळालं? फाईल मॅनेजमेंट, फाईल, आता ओएसचं सांगितलं, लोडिंग, अनलोडिंग, एक्झिक्युशन, काय कुठला पार्ट आहे जो नाही कळाला तुम्हाला, आणि त्यातलं काय ऍस्पेक्ट आहे जो तुम्हाला कन्फ्युजन आलं? लक्ष होतं तुमचं, तर काय कळालं नाही मला सांगा, मी एक्सप्लेन करतो. ओके, आशीष भी एक है जिसको नहीं समझ में आया. आशीष, क्या नहीं समझ में आया आपको? सर जो आपने बोला कि सीपीयू इंस्ट्रक्ट करता है, वो कोड रन करवाता है. सीपीयू इंस्ट्रक्ट नहीं करता है. नहीं, सीपीयू इंस्ट्रक्ट नहीं करता. इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर. यानी अगर आप गेम डेवलप कर रहे हो तो आपने गेम के अंदर पबजी आप लिख रहे हो तो पबजी के अंदर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, बट ये इंस्ट्रक्शन आप और मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ सीपीयू ही एग्जीक्यूट कर सकता है. करेक्ट? यहाँ तक ठीक है आशीष? यस सर. ओके, मगर ये एग्जीक्यूट करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुंचने चाहिए. यस. क्या आप जाके सीपीयू को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन फीड कर सकते हो क्या? नहीं सर. नहीं. तो हम लोग ओएस के पास ये प्रोग्राम देते हैं. जब आप डबल क्लिक करते हो प्रोग्राम, तो आप ओएस को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि इस प्रोग्राम को रन कर. तो रन कर का मतलब क्या है? आपने कहा सर मैंने डबल क्लिक किया, उसके आइकन पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. डबल क्लिक करने से आपने नोटिफाई किया ओएस को कि मुझे ये प्रोग्राम रन करना है. तो ओएस ने क्या करेगा? ओएस उस प्रोग्राम को अगर रन करना है, सीपीयू का एक रिस्ट्रिक्शन है. सीपीयू है ना, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से किसी प्रोग्राम को रन नहीं करता है. फॉर एनी प्रोग्राम और एनी इंस्ट्रक्शन, सीपीयू वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ फेच एंड एग्जीक्यूट. सीपीयू एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन फेच कर सकता है, और वो है रैम में से. तो ओएस प्रिपेयर्स द प्रोग्राम टू रन. ओएस प्रोग्राम को रन करने के लिए कैसे प्रिपेयर करता है? उस प्रोग्राम के अंदर के इंस्ट्रक्शन है उनको रैम में लोड करना है. तो रैम में एक जगह उसके लिए अवेलेबल करके देना है. ये ना हो कि आपका एक पबजी यहाँ रन कर रहा है और उसी जगह पे आपका कैलकुलेटर भी रन कर रहा है. ये नहीं हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. तो उस प्रोग्राम को जब तक रन कर रहा है, एक डेडिकेटेड स्पेस एरिया मेमोरी में चाहिए. एक स्पेस चाहिए मेमोरी एरिया में. तो आपके जितने सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, हर एक प्रोग्राम के लिए रैम में एक डेडिकेटेड स्पेस दिया जाएगा. समझो, अभी आपके प्रोग्राम में पावर पॉइंट चालू है,
तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड अगर अपना रैम है, ऐसा एज्यूम करते हैं पूरा व्हाइट बोर्ड अपना रैम है, तो ये पावर पॉइंट के लिए जगह दे दी ओएस के अंदर। फिर ये आपका पबजी था, ये पबजी के लिए स्पेस दे दी। फिर आपका एक जूम एप्लीकेशन था, तो ये जूम एप्लीकेशन के लिए एक स्पेस दे दिया, जूम के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए था, पबजी के लिए और भी ज्यादा मेमोरी चाहिए था। तो जितने एप्लीकेशन के लिए जितनी मेमोरी चाहिए, ओएस ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है फॉर एवरी एप्लीकेशन। समझो आपका पहला क्या काम है ना, कैलकुलेटर है। समझो ये पहला कैलकुलेटर है, दूसरा पबजी है और तीसरा जूम एप्लीकेशन है। हर एक प्रोग्राम के लिए ओएस ने रैम के अंदर, व्हाइट बोर्ड मेरा रैम है समझो, उसके अंदर स्पेस अवेलेबल करके दे दिया, मेमोरी एलोकेट करके दे दी। ये समझो ये मेमोरी है, रैम में दी हुई मेमोरी है। और इसके अंदर क्या रहेगा, वो प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शंस को लोड करेगा। तो ओएस ही है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को इस मेमोरी में लोड करेगा, उस प्रोग्राम के पबजी के एरिया में लोड करेगा। ये जो तीसरा जूम था, जूम के इंस्ट्रक्शन लोड करेगा। अब सीपीयू एक्शन में आएगा। व्हाट विल द सीपीयू डू? सीपीयू, ये आपका सीपीयू है समझो, CPU will fetch instructions from this particular program and execute it line by line। पहला इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन, ऐसे एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएगा। समझो ये पहले रन कर लिया, फिर ये रन कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, ये एग्जीक्यूट कर लिया, ये एग्जीक्यूट कर लिया। जब काम खत्म हो गया, पूरा एग्जीक्यूट करके खत्म हो गया, तब इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट की है वो भी रिलीज कर देगा। What is the memory that has been allocated will also be released, because अभी ये प्रोग्राम खत्म हो चुका है ना, तो इसके लिए मेमोरी नहीं चाहिए, ताकि ये एरिया जो अभी मेमोरी में है ये किसी और प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपने पावर पॉइंट की जगह एक्सेल स्टार्ट किया, एक्सेल की भी जगह चाहिए। अब यही प्रोग्राम जो लास्ट टाइम पावर पॉइंट के लिए यूज किया गया था एरिया, अब वो शायद एक्सेल के लिए वही एरिया यूज किया जाए। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए चाहिए मेमोरी। मेमोरी कहाँ चाहिए? रैम में चाहिए। वो मेमोरी रैम में कौन एलोकेट करेगा? ओएस। और प्रोग्राम जो है आपका एक्सेल, वो हार्ड डिस्क पे है। हार्ड डिस्क में से यहाँ इसके अंदर लोड कौन करेगा? ओएस। लोड होने के बाद सीपीयू को कौन बताएगा कि ये प्रोग्राम लोडेड है, तो इस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर, ओएस। यानी सीपीयू से कोई काम करवाना है, सीपीयू को कहना है कि तू एक्सेल का प्रोग्राम रन कर, या फिर पबजी रन कर, या फिर मेरा कोई जूम एप्लीकेशन रन कर। ये भी कौन बता रहा है? ओएस। तो ओएस इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, राइट फ्रॉम allocating memory for liquor को, allocating memory in the RAM for the program, loading the memory program from the hard disk into that memory area, telling the CPU that program is ready to run, and asking the CPU to execute the instructions। ये सारे काम कौन कर रहा है? तो OS। यानी OS का ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज allocation and deallocation of resources। दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, एक प्राइमरी मेमोरी रैम और सेकेंड दूसरा रिसोर्स है सीपीयू। तो रैम और सीपीयू, इन दो रिसोर्सेस को अलोकेट करना है आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए, बिकॉज बिना रैम के प्रोग्राम रन नहीं होगा, बिकॉज प्रोग्राम को तो रैम में लोड होना चाहिए, और जब तक लोड नहीं होता है सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो सीपीयू को कौन बताएगा कि तू कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर? सीपीयू एक वर्कर है समझो आपके पास, और आपके पास 10 टास्क रन करने, पावर पॉइंट भी रन करना है, पबजी भी खेलना है, जूम भी रन करना है, 3 तो टास्क है। तो ये सीपीयू आपका एक वर्कर है, और मैं अगर ओएस हूं, मैं ओएस को कहूंगा तो पहले पबजी खेल, देन जूम पे जा, एंड देन गो अहेड विद रनिंग द पावर पॉइंट, ऐसे। तो ये जो शेड्यूलिंग ऑफ टास्क है कि कौन से प्रोग्राम के अंदर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है और कितने समय के लिए एग्जीक्यूट करना है, ये सारा काम कौन कर रहा है? तो ओएस। तो ओएस allocates रिसोर्स एंड डीएलोकेट्स द रिसोर्स। कौन से दो रिसोर्स? रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट करता है, प्रोसेसर एलोकेट करता है। देखा आपने 2%, 5%, 9% कह रहा था, वो प्रोसेसर एलोकेट करेगा, प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करता है, यानी उतने समय के लिए आपका प्रोसेसर सिर्फ उस प्रोसेस पे काम करेगा, उस प्रोग्राम पे काम करेगा, और वो जो प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाए, उस प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी एलोकेट किया था उसे भी रिलीज कर देगा। हैव यू अंडरस्टूड आशीष? यस सर। मंदार? येस सर। तुम्हाला डाऊट कुठं होता मंदार? ह्यातल्या कुठल्या पार्ट मध्ये डाऊट होता? सर ते हार्ड डिस्कला पेरिफेरल का म्हणतात ते? मग तो तुम्ही आता डिस्कस नाही केला. हार्ड डिस्कला पेरिफेरल डिव्हाइस का म्हणतात? कीबोर्ड असणं गरजेचं आहे का कम्प्युटर म्हणण्यासाठी? नो सर. नाही का? माझ्याकडे जर जॉयस्टिक असेल ना, त्या जॉयस्टिकनी पण मी खेळू शकतो. येस सर. तसं हार्ड डिस्क असण्याची गरज नाही. बिना हार्ड डिस्कचं देखील आपण मशीन वापरू शकतो. वी कॅन यूज द मशीन इवन विदाउट हार्ड डिस्क.
only thing is normally we use hard disk. That doesn't mean we have to have hard disk. I can boot my OS, my laptop by removing hard disk as well. नेट कनेक्ट करके भी मैं बूट कर सकता हूँ, इथरनेट पे भी बूट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है फॉर हार्ड डिस्क टू बी प्रेजेंट। आजकल के ओएस इतने हेवी होते हैं तो इसीलिए वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करके रखते हैं हम लोग, और हार्ड डिस्क से वो बूट होता है। अगर आपने बूटिंग का सीक्वेंस मशीन में ना स्टार्ट करते समय F2 या F10 प्रेस करके देखो, वहाँ बूट सीक्वेंस पूछेगा, वहाँ इथरनेट वगैरह भी पूछेगा, यानी नेटवर्क से भी आप बूट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता है हार्ड डिस्क हो आपके मशीन में। तो हार्ड डिस्क इज अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज नॉट अ डिवाइस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टार्ट द मशीन। बिना हार्ड डिस्क ऑल्सो यू कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम योर कंप्यूटर, बट बिना रैम के यू कैनॉट डू एनीथिंग, बिना प्रोसेसर के यू कैनॉट डू। मेरे पास एक मशीन है उसमें रैम ही नहीं है, इट विल नॉट स्टार्ट, बिकॉज OS इज ऑल्सो प्रोग्राम, उसे भी रैम में ही लोड करना होता है। देयर इज सम एरिया इन द रैम which is made dedicatedly available only for OS, वो सिर्फ OS के लिए अवेलेबल करके दिया जाता है। Come Yes, sir. on, तो टिक मार्क करो समझ में आया तो। आशीष समझ में आया तो टिक करो। मंदार, गणेश, कि सबके नाम क्यों पुकारने चाहिए? शिवम, शुभ, श्वेता, शिवम, शुभ एंड श्वेता। ये कॉलेज के लेक्चर्स नहीं है जहां आप ऑन करके गए घूमने, ये नहीं चलेगा। यू आर लर्निंग, यू आर इन्वेस्टिंग दिस एडिशनल टाइम एंड मनी, व्हाई? फॉर यू टू हैव दैट प्रोफेशनल काइंड ऑफ नॉलेज विच यू विल बी यूजिंग फॉर योर करियर। ये एग्जाम के लिए नहीं है, कॉलेज के एग्जाम देके कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है हमें। It is to make your career, make or break or your career either. So if you want to make your career, you have to be attentive, and if you are attentive, you have to respond. Shivam and Shubh, चलो स्क्वायर रिस्पॉन्ड करो। अरे इतनी बार क्या कहने की जरूरत पड़ती है? गणेश, चलो पहला लेक्चर इसलिए मैं शायद माफ कर दूं, बाद में आई डोंट लेट स्टूडेंट्स अटेंड द सेशन अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे। शिवम या एंड शुभ, क्या इश्यू है शिवम? अनम्यूट तो कर सकता है। जूम पहली बार अटेंड कर रहे हैं क्या जूम मीटिंग? दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है, मैं अज्यूम करता हूँ वो कोर्स में इंटरेस्टेड भी नहीं है। आई गेट वेरी इरिटेटेड जब कोई रिस्पॉन्ड ना करे। भले अभी मंदार ने टिक किया, नो क्रॉस कहा, नहीं समझ में, आशीष ने क्रॉस किया, कोई दिक्कत नहीं है। शायद अगली बार समझाते समय मैंने कुछ और यूज किया, बताया रहेगा जो पहली बार नहीं बताया। That could be the case. You will learn more by asking questions, and I'm here to repeat the answer or explain in different ways as many number of times it's possible. And I can actually explain the entire OS also. That's not an issue. But then that's not our focus. So for any software to be called as an OS, it has to perform two major operations. चलो जल्दी बताइए क्या major operations है जो करनी चाहिए for any software to be called as an OS? File management and memory management. दोनों होने चाहिए, file management and memory management. Okay, so that is what the next point was all about. फिर आप सोचते रहोगे हम OS पे कहाँ स्विच हो गए सर, हम तो यहाँ सीखने आए कुछ और आप हमें सिखा रहे हो OS का कॉन्सेप्ट। सब रिलेटेड है, अनरिलेटेड कोई चीज बात नहीं करूंगा, फालतू में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। वी टॉक अबाउट BCPL, हम लोग यहाँ तक आए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स आर नथिंग बट वेरियस डिवाइसेस, राइट फ्रॉम मॉनिटर, कीबोर्ड, टेप्स तो आपने देखे नहीं रहेंगे, ये ऐसे फ्लॉपी डिस्क भी नहीं देखे, हार्ड डिस्क आपको पता रहेगा, पेन ड्राइव रहेगा भी, कीबोर्ड, ऑल दीज आर वेरियस डिवाइसेस। इन सारे डिवाइसेस को मैनेज करने का काम आपके OS का है, फाइल मैनेजमेंट। बट OS का और एक काम है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट, और वहां आता है अंदर जो लिखे CPU एंड प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज आपका डिस्क है, प्राइमरी स्टोरेज आपका रैम है। इन दो रिसोर्सेस को कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये भी काम आपके OS का है। तो OS परफॉर्म्स allocation and deallocation of these two important resources and controlling all these peripheral devices which are connected to your machine. Now, what's the relationship between your application software and operating system software? तो जब आप कोई गाना सुनते हो तो आपने Winamp वगैरह स्टार्ट किया रहेगा और उसमें आपने कोई गाना प्ले किया रहेगा, या VLC प्लेयर स्टार्ट किया रहेगा और उसमें कोई गाना प्ले किया रहेगा। सपोज आई हैव अ VLC प्लेयर एंड आई स्टार्ट विद दैट VLC प्लेयर। सपोज मैंने VLC प्लेयर स्टार्ट कर लिया एंड कोई तो एक हमने वीडियो प्ले करवा लिया। सपोज सम वीडियो आई प्ले, ये कुछ है ही नहीं यार, मेरे पास वीडियोज ही नहीं है प्ले करने के लिए। बट एनीवे, सपोज आई कुड हैव स्टार्टेड विद दिस, and if there is any video that is there, I could have played that particular video.
अब ये तो सारे कोई वीडियोस नहीं है, बट आई डू हैव सम वीडियोस. ओपन फाइल, और समझो मेरे पास ये वीडियो है. एक वीडियो है, ये वीडियो हमने प्ले किया. ऐसा कोई मैंने एक एप्लीकेशन रन कर लिया, बट ये एप्लीकेशन रन कैसे हो रहा है? व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? आप और मैं एक यूजर हूं, जैसे अभी मैं एक यूजर था, मैंने वीएलसी प्लेयर रन किया. दिस वीएलसी प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है. उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ओएस में जगह चाहिए, रैम में जगह चाहिए. वो आपका ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस, ये आपके हार्डवेयर पे, रैम पे उस वीएलसी प्लेयर को रन करने के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा, और फिर हार्ड डिस्क से उस सॉफ्टवेयर को रैम के अंदर लोड करेगा, और फिर सीपीयू को बताएगा कि उसे रन कर. दैट मीन्स किसी ने कहा था सर इट फॉर्म्स एन इंटरफेस. इट फॉर्म्स एन इंटरफेस मतलब क्या? आप कभी, वेरी ऑफन यू नेवर एक्चुअली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डायरेक्टली. जब भी हमें कोई फाइल टाइप कर रहे हैं, आपने उसे सेव करना है, तो आपने फाइल टाइप कर रहे हैं यूजिंग नोटपैड में, आप फाइल टाइप करते रहेंगे. समझो आपने ऐसे कोई तो एक नोटपैड वगैरह क्रिएट स्टार्ट किया है, और उसमें आप कोई तो फाइल टाइप कर रहे हो, समझो टाइपिंग समथिंग. ये टाइपिंग खत्म हो गया तो आप कहते हैं फाइल सेव, ऐसा कुछ तो कह देते हैं. तो व्हेन यू से फाइल सेव, आपने ओएस को रिक्वेस्ट किया कि ये फाइल सेव कर, और ओएस ने हार्ड डिस्क में जाके उस फाइल को राइट करवाया. एंड हार्ड डिस्क में जो ऑपरेशन करने थे वो ओएस के कमांड पे हो चुके हैं. That means you never get the work done from the hardware directly. You and me as a user, कोई गाना प्ले करना है तो हम VLC प्लेयर स्टार्ट करते हैं, VLC प्लेयर OS हैंडल कर देता है, एंड OS फिर उस स्पीकर में से वो आवाज निकालने के लिए जो इंस्ट्रक्शन रहेगा हार्डवेयर को वो देगा. तो यूजर एंड हार्डवेयर, ये यूजर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है. यूजर यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नोटपैड, पेन ब्रश, VLC, ये आपका जूम, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. और इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए चाहिए ओएस. इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर बिना ओएस के रन नहीं कर सकता है. फॉर यू टू रन एनी सॉफ्टवेयर बिना ओएस के रन नहीं कर सकता है, बिकॉज ओएस ही है जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पे रन करने के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, हार्डवेयर को बताएगा कि इस प्रोग्राम को रन कर, मीन्स सीपीयू को बताएगा इस प्रोग्राम को रन कर. ये सारा इंटरफेसिंग कौन कर रहा है? तो ओएस. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू रन योर प्रोग्राम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट फॉर्म्स, ये याद रखो, यूजर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये नोटपैड, पेन ब्रश, जूम, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन टॉप ऑफ योर ओएस. बिना ओएस के इसको तो रन ही नहीं कर सकते. एंड ओएस इज द वन विच इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर. तो हम क्या करते हैं? हम कमांड देते हैं थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ओएस, एंड ओएस देन गेट्स द वर्क डन फ्रॉम द हार्डवेयर. तो आपका फ्लो कैसे है? अभी मैं जूम के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, तो वी एज ए यूजर मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software internally makes a request to the OS. OS then gets the work done from the hardware. ये स्टोरी है when we say talk about interface. तो कोई कहता है सर it forms an interface. तो ये कैसे करता है interface? That is what I have explained. Have you understood this? Quick feedback. Interface का concept क्या है? No direct interaction with the hardware. हम कभी भी जिंदगी में अपने हार्ड डिस्क पे जाके सर मैंने राइट किया, नॉट पॉसिबल राजा. मैंने सर गाना प्ले किया, स्पीकर में से आवाज आई ना रे बाबा. आपने VLC प्लेयर को कहा गाना प्ले कर, VLC प्लेयर ने ओएस को वो रिक्वेस्ट भेजी कि ये नोट चाहिए, एंड VLC प्लेयर ने फिर हार्डवेयर पे वो करेक्ट इंस्ट्रक्शन भेजते हुए हार्डवेयर से वो आवाज निकालवाया, एंड देन यू कुड हियर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. क्विक फीडबैक यार, यस नो? कोई समझा रहा है आपको? उतना तो मुंडी तो क्लास में खड़े रहोगे तो मुंडी तो हिलाओगे ना, तो यहाँ कम से कम उतना तो कर सकते हैं ना, टिक मार्क कर सकते हैं. नहीं समझ आया तो ना बोलो. देखो यू आर हियर टू लर्न. अगर आपको सब कुछ पता होता ना तो आप यहाँ आते नहीं. फर्स्ट तो नहीं मालूम इसलिए यहाँ आए हो या ये सेशन अटेंड कर रहे हो. तो आपकी ड्यूटी बनती है कि क्या नहीं समझ में आया वो आपके डाउट्स क्लैरिफाई करके ले लो, और कुछ समझ में आया तो अप्रिशिएट करो, बताओ हाँ यार समझ में आ गया, ये अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा. मानसी, रोशन, शुभ, रोहन. सर ये लिंकर लोडर
बोला ना, बोलो यार, कंप्लीट करो सेंटेंस. अरे सेंटेंस कंप्लीट करो. अरे मानसी, कंप्लीट करो सेंटेंस. क्या क्वेश्चन है आपका? सर लिंकर और लोडर पैकेज मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये ओएस का लोडर ही है जो सॉफ्टवेयर को लोड कर रहा है मेमोरी में. हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी रैम में लोड कर रहा है, यानी उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस को कॉपी कर रहा है इनटू द रैम. रैम में कहा जहां उसके लिए स्पेस एलोकेट करके दिए वहां वो लोड कर रहा है. लोडर का मतलब है लोड करो. लोड क्या करो? आपको और मुझे वहां जाके लोड नहीं करवाना है. यानी हार्ड डिस्क पे या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जहां कहीं है, आपके प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें आपको रन करना है उनको उठा के रैम में जब तक नहीं डालेगा तब तक सीपीयू से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. बिकॉज व्हाट डिड आई टेल यू, सीपीयू वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फेच एंड एग्जीक्यूट. और सीपीयू एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकता है और वो है रैम में से. तो रैम में इंस्ट्रक्शंस आएंगे कहां से? तो ओएस का लोडर इज अ कंपोनेंट ऑफ योर ओएस. ओएस कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ओएस इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स. और ओएस के अंदर का ये जो लोडर कंपोनेंट है ये काम करता है सॉफ्टवेयर को मेमोरी में, रैम में लोड करने का. तो जब मैं ओएस कह रहा हूं तो लोडर इज अ पार्ट ऑफ ओएस, while linker is not a part of OS. Linker has nothing to do with OS. Loader is definitely a part of OS, and that's a system software. Does that clear your doubt? Yes, no? Yes. Okay. So we are talking about OS, but now why are we doing all this thing? इतनी मगजमारी हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों ना जल्दी से हम लोग सी की तरफ चले जाए? That's not enough. Listen, when these high level languages are not there, and when we had to get the work done from the machine, जब आपको मशीन से काम करवाना था, life was very very difficult. When I say it was very difficult, it was really very difficult. I'm going to show you some instructions और देखते हैं आप में से कितने लोग इस instructions को identify कर पा रहे हैं. तो ये सामने है आपके instructions. कुछ कोई बता सकता है instructions क्या है, क्या करेगा? नहीं सर. कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कोशिश करके देखो. नहीं सर, ये बाइनरी है. Okay, here hardly anything we understand, and let me explain you what. यहाँ ये जो भी कोड है ये मशीन लेवल कोड है. फिर मैं कह रहा हूँ ये मेरे इंस्ट्रक्शंस है और ये इंस्ट्रक्शंस को इस एरिया पे लोड करना है मेमोरी में और ये ऑपरेशंस करना है. ये ऐसा अगर कोड लिखना है 001100 और ये 100555 और .sp.x.dy, अरे इट इज मीनिंगलेस. 10 टाइम्स भी अगर आप पढ़ोगे ना, आई गेस none of you will be in a position to understand what is this particular, or even guess what is this particular program doing. While this could have been a very simple program doing only addition of two numbers, but then there is hardly anything that you'll ever understand looking at this particular code. So this was a program, the way we had to write a program early days. जब कंप्यूटर पहले आया तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने थे तो you had to talk to the machine in the format the machine understands. So when you start talking to the machine in the format that it understands, this is how you write the code, wherein we specify what is the location, what is the instruction that we want to perform, और वो कौन से रजिस्टर में कहाँ डालना है, क्या करना है, ये सब कुछ आपको देना था. It is very difficult for anybody to write such complex programs. Very very difficult. अच्छे को पसीना आ जाता है when they are required to write such kind of program. और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है और एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है. वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज देयर. क्या कोई गेस कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने लाइंस ऑफ कोड रहेगा? एनी गेस? यस, एनी गेस? लाखो यानी लाखो म्हटलं तर किती बनवू शकतो ना, किती लाख असं ना? 1 लाख, 2 लाख,
यस, होगा 10-15 करोड़। 10-15 करोड़। ओके, 10-15 करोड़। ओके, 10-15 करोड़ क्या बात कर रहे हैं? कोई लिख पाएगा ये जिंदगी में इतने लाइन्स? अकेला तो नहीं लिखता होगा, कोई टीम होती अकेला होगी तो ऐसे। नहीं, टीम रहेगी, हाँ। करेक्ट, बट टीम भी 10-15 करोड़, डोंट यू फील इट इज ह्यूज? हाँ, यूज तो है। हाँ, ओके, एंड लेट मी शो यू हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड Oneness दैट आर में देयर। हाँ, ओके, ओएस के अंदर एक कंपोनेंट होता है कर्नल। कल भी हमने उस वर्ड को मेंशन किया था, कर्नल। ये कर्नल अकेला, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड अगर हम लोग बात करें, इस कर्नल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, कर्नल एक पार्ट, लोडर बिल्डर तो बात की बात है, एक कर्नल अकेले में 27.8 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है, और उसका सिस्टम भी है कि उसमें 1.3 मिलियन। तो सब कुछ अगर हम लोग सारे काउंट करना, टोटल करना शुरू करें, तो इट कुड बी quite a long code that we'll have to write. Means millions of lines of code has to be written, 27.8 millions of lines of code only in one component of OS. तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम है, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है। शेयर नंबर ऑफ लाइंस ही इतने हैं, अकेला बंदा शुरू करेगा तो उसके शायद जिंदगी में वो लिखते बैठे कोड। तो ये किसी ने कहा, गौरव ने कहा, ये टीम रहेगी, एंड दैट्स वेरी ट्रू, इट्स अ टीम, बट इवन फॉर अ टीम टू राइट 27 मिलियन लाइंस ऑफ कोड विल टेक एजेस। ओके, और वो कोड अगर आप इस स्टाइल में लिखोगे तो जिंदगी में किसी को मेंटेन करने आएगा? किसी ने 28 मिलियन लाइन छोड़ दो, ये 28 लाइंस का कोड लिखा रहेगा, तो डज इट मेक सेंस फॉर यू? तो अगर ऐसे 28 मिलियन लाइंस ऑफ कोड आपके सामने आ जाए और आपको कहा जाए इस कोड को मेंटेन करो, लाइफ वुड बी मिजरेबल, यू विल कमिट सुसाइड लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर कोड। तो वी वांट टू हैव बेटर वे टू राइट प्रोग्राम्स, एंड लाइफ वाज डिफिकल्ट। और बिलीव मी, अभी हमने ओएस की बात की, छोटे मोटे काम कर रहा था क्या? इंस्ट्रक्शंस को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करना, रैम में जगह एलोकेट करना, काम खत्म होने पर वो मेमोरी रिलीज करना, सीपीयू से बात करनी, सीपीयू को कहना कि ये मेमोरी को अंदर के इंस्ट्रक्शन तू रन कर, इस प्रोग्राम के बाद उस प्रोग्राम को रन कर, उनका शेड्यूलिंग, टाइम टेबल बनाना, ऑल दोस थिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर ओएस। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दैट वन हैज टू राइट। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस अगर अभी मैंने जो दिखाया आपको मशीन लैंग्वेज में लिखे, लाइफ वाज डिफिकल्ट, but there are some talented people which are God gifted, and they did write the entire OS using those kind of instructions. यानी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिखाया है, वैसे इंस्ट्रक्शन से उन्होंने lakhs of lines, millions of lines, तब भी OS का काम भी छोटा था, बट फिर भी several lakh lines of code उन्होंने लिखा using those machine codes. But then, and they created an operating system using it. तो किसी को पता है which was one of the first operating system that was created? Yes, anybody? One of the first operating system? Windows या Mac या Linux? Yes, come on, give an answer. Windows, okay. Windows 2.0. Windows 2.0. विंडोज तो बहुत लेट आ गया, इवन आफ्टर आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग बहुत लेट आ गया, एंड आई वाज फैसिनेटेड। मुझे अभी भी याद है विंडोज 3.1 जब मैंने पहली बार यूज किया था, एंड आई वेंट इनटू अ लैब, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वर्किंग ऑन पावर पॉइंट, एंड वी ऑल वर अमेज्ड। हम सारे लोग पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि ऐसे माउस से वो मूव कर रहा है, लाइन ड्रॉ कर रहा है, वी आर सो अमेज्ड, जादू हो रहा है काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वी ऑल वर वर्किंग दोस डेज बिफोर विंडोज केम इन पिक्चर। द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच वाज रूलिंग द मार्केट वाज यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वैसे एक जमाने में आईबीएम था। इट वाज रिचर देन सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इतना रिच था कंपनी कॉल्ड एज आईबीएम, बिकॉज उन्होंने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो पॉपुलर हुआ था मार्केट में, एंड दैट वाज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं कि बाकी नहीं थे, बट दे वर द कंपनी व्हिच वाज क्रिएटिंग हार्डवेयर एंड ओएस दोनों। आजकल कैसे आप हार्डवेयर कोई भी खरीदते हो और उस पर जो चाहे मन चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हो। अर्ली डेज ऐसा नहीं था, 60s और 50s में ऐसा नहीं था। आप मशीन खरीदोगे तो उसके साथ ओएस भी आएगा कंपल्सरी, और आप ओएस को चेंज नहीं कर सकते थे उस जमाने में। सो दे शिप देयर हार्डवेयर विद ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एज यूनिक्स, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज एंटायरली रिटन इन दैट मशीन लैंग्वेज कोड, यानी जो असेंबली लैंग्वेज कोड है जिसे हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज कोड, उसमें लिखा गया था। एंड बिलीव मी, व्हेन यू सॉ दैट कोड, डिड एनी इंस्ट्रक्शन मेक एनी सेंस टू यू? कुछ समझ में आया वो इंस्ट्रक्शन देखते हुए? समझ में आया? क्या समझ में आया आदित्य आपको?
No, sir. nahi. Okay, so the entire operating system was written using assembly language. It is very difficult, even for me it's a challenge. अगर आप मुझे भी कहोगे सर पूरा समझाओ, I'll still not take on that challenge because it's really very difficult to understand those instructions. Excuse me. The creators of Unix, God knows how, we call them as God gifted, Batch and other people, they created that particular code. And that operating system became very, very popular. Why? Because it was talking to the machine in the format that the machine understands. Now there is an immediate advantage of talking to the machine in the format that machine understands. Say हमारे पास गौरव है, गौरव शर्मा है, समझो गौरव उत्तर प्रदेश से है. गौरव कहाँ से आप? दिल्ली. दिल्ली से. एंड प्रॉपर दिल्ली से हो या पुणे? हाँ वही यही. पुणे में अभी नहीं आया, मैं अभी यही. नहीं. And then if I start speaking to you in Marathi, does it make any sense to you? नहीं. नहीं. Now देखिए, Gaurav and I have to communicate. Gaurav doesn't understand Marathi and I don't understand Hindi. Then can we communicate, Gaurav? हाँ फिर इंग्लिश में कर लेंगे. इंग्लिश भी नहीं आते. एक ही लैंग्वेज में जानता हूँ मराठी, और आप भी एक ही, आप भी ऐसे हो एकदम हरियाणवी या दिल्ली में से किसी कोने में से सिर्फ हिंदी जानते हो. तो फिर हम गूगल ट्रांसलेट का यूज करेंगे. नहीं ना, गूगल ट्रांसलेट कहाँ से टाइप करें ट्रांसलेट करने के लिए? वो नेट भी, इंटरनेट भी यूज करने आना चाहिए ना, गूगल भी आना चाहिए. तो फिर मैं किसी एक ऐसे बुलाऊंगा जिसको दोनों आती होगी. करेक्ट. और उससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे. यानी आप उससे जो कुछ मैसेज देना दोगे वो ट्रांसलेट करके मुझे देगा. आई विल रेस्पॉन्ड एंड दैट ट्रांसलेट एंड गिव इट टू, एंड वी बोथ विल कम्युनिकेट. दैट्स हाउ ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. यस सर. करेक्ट. व्हाट्स द डिसएडवांटेज हियर? दिस इज कम्स एट अ कॉस्ट. या कॉस्ट क्या है? इसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा है और टाइम इज अ कॉस्ट. इसमें टाइम इज अ कॉस्ट. दैट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग टू दैट मशीन्स इन अ इनकम्पैटिबल वे, देयर इज अ ट्रांसलेटर व्हिच इज रिक्वायर्ड एंड दैट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट. सो बिगेस्ट कंसर्न हियर इज टाइम. टाइम इज स्पेंड मोर. बट देन समझो, अगर मैं हिंदी में बात करता या आप मराठी में बात कर लेते, देन वी कैन हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो लाइकवाइज, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द मशीन इन द फॉर्मेट दैट you understand and not the machine, तो बीच में ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेट करके मशीन से कोई काम करवाना है. But if you directly start talking to the machine in the format which the machine understand, nothing can work faster than that. Yes sir. An assembly language is a format which can be used to talk to the machine in the format that the machine can understand. Machine language में ही बात करेंगे. But दिक्कत क्या है उस फॉर्मेट में कोड लिखने की? Anybody? अभी मैंने आपको कोड दिखाया, उस फॉर्मेट में कोड लिखने की दिक्कत क्या है? बहुत मुश्किल है ना वो मशीन के लिए आसान है. और आपके मेरे लिए डिफिकल्ट है प्रोग्रामर के लिए. और आप जब प्रोग्राम लिखते हो, ऐसा कौन सा दुनिया में रिक्वायरमेंट है जो कभी चेंज नहीं होता है? प्रोग्राम्स को चेंज करना जरूरी होता है. और पीरियड हमें उनमें चेंजेस करने हो तो कोई बग आ जाता है, कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, प्रोग्राम को चेंज करना है. अगर आप प्रोग्राम समझ ही नहीं पाए तो चेंज कर पाएंगे? नहीं. Now listen. Unix operating system was released in early 60s. It became an instant hit globally. IBM में कभी नहीं कमाए इतने पैसे, IBM ने कुछ सालों में कमा लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम मिड 60s में आया, वेरी पॉपुलर, दुनिया भर वो शिप किया गया, सप्लाई किया गया. दे मेड मिलियंस एंड बिलियंस आउट ऑफ इट. इट बिकेम रिचर देन वेरियस कंट्रीज. इतना पैसा IBM ने कमाया. व्हाइल दे डिड दैट, द सॉफ्टवेयर बिकेम वेरी पॉपुलर. जैसे एप्पल आया, एप्पल का आईफोन आ गया, वेरी पॉपुलर. बट एक साल नहीं होता है तो लोग बोर हो जाते उससे. उनको लगता है यार ये आईफोन तो है, बट इसमें और भी कुछ फीचर होता तो अच्छा होता. इवन द बेस्ट ऑफ द डिवाइस आपके पास है तो भी आप यू गेट बोर एंड यू वांट समथिंग मोर. यस और नो? है कि नहीं ह्यूमन टेंडेंसी? Yes sir. ओके. कितना भी बढ़िया है आईफोन, एकदम बढ़िया है, फिर भी एक साल पहले दिन तो बहुत अच्छा लगता है, नींद नहीं आती है, और एक साल के बाद लगता है यार इसमें ये भी चाहिए था, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं. स्टार्ट कंप्लेनिंग. एंड व्हेन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, आईफोन कम्स विद एन अपडेट एंड देन वो अपडेट डाल देते हो, देन इट परफॉर्म्स इवन बेटर. वो एडिशनल सर्विसेज देना शुरू कर देता है. सेम थिंग हैपेंड विद यूनिक्स. Unix was a fantastically designed system. We means the programming community says ये शायद एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लोगों का काम है, किसी ने बाहर से आके आपको नॉलेज दिया तभी ये पॉसिबल हुआ है. ये इतना मुश्किल कोड किसी ने कैसे लिख सकता है? कोई पहले किसी के दिमाग में इतना आइडिया कैसे आ सकता है? बट दिस गाइज who working at AT&T and Bell Lab in US, एक टीम थी, छोटी सी टीम थी. एक छोटी सी टीम ने, when I say छोटी सी थी, छोटी सी टीम थी. It was literally very small team, not more than 10-15 people, and they wrote this entire code. Now these guys has to be genius when इतनी छोटी टीम इतना complex code लिख जाए. But when they created this particular product, that product became extremely popular.
बट इतने रिक्वायरमेंट्स आने लगे, इसमें ये भी चाहिए, ये फीचर चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसमें और ये इम्प्रूव होना चाहिए, ये और फास्ट काम करना चाहिए. Already they had created a software which was talking to the machine in the format it understands. It was already working very fast. They wanted still it to work fast. They wanted some additional features in that language, in that operating system. अब ये बिना कोड लिखे होने वाला है, बिना एग्जिस्टिंग कोड में चेंज किए होने वाला है? No. तो you need to write, make changes in the existing code. You need to write additional code because नए फीचर चाहिए आपको, और भी कुछ चाहिए, कॉपी का फीचर चाहिए, गाना बजाने का फीचर चाहिए, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. उन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए there is more number of lines of code that we have to write. Now if you have to write that many number of lines of code, we require bigger team. और बिगर टीम के लिए अच्छे लोग भी चाहिए. सो दिस गाइस हु आर वर्किंग एट AT&T एंड बेल लैब्स यूएस में. यूएस में कहाँ है मत पूछो मुझे, गूगल सर्च कर लो. आई थिंक इट वाज, मुझे याद है, मालूम है, याद नहीं आ रहा है. ये है ना, मेमोरी काम नहीं करती है. नोटबुक में लिखा होता है. अच्छा, मेरे नोटबुक में है. आई कैन जस्ट ओपन अ पेज एंड आई कैन लेट यू नो. पॉइंट इज AT&T बेल लैब्स में है, ये लोग थे. इनको महसूस हुआ कि अभी ये मैनेजेबल नहीं उनसे, उनको टीम साइज बढ़ानी है. सो दे वेंट टू द बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक MIT, स्टैनफोर्ड. यहां से उन्होंने बच्चे लिए. नाउ दीज आर द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, MIT एंड स्टैनफोर्ड्स. Yes or no? And even when they got engineers from those, they realized these engineers couldn't understand that particular code. अगर उनको आइडिया तो उनके दिमाग में है, बट ये कोड ही समझ में नहीं आया, तो चेंजेस क्या करेंगे? And they realized what problem they had created. They had written a fantastic code which the next generation did not understand. And when they go off, वो code का कौन क्या करेगा? And they wanted to write that particular code. So they stopped that particular process and they took up another project. And another project was translating this particular entire machine language code into human understandable format. और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था. They hired a team, बड़ी सी टीम बनाई, and that team took around 3 years only to translate this particular code. तो सोचो कितना कॉम्प्लेक्स कोड रहेगा. एंड व्हाइल दे ट्रांसलेटेड, दे स्टार्टेड एडिंग सम एडिशनल बिहेवियर एज वेल. यानी ओएस का जो काम कर रहा था, उसके लिए जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है, दे स्टार्टेड यूजिंग न्यूमोनिक्स फॉर दोस इंस्ट्रक्शंस. मींस अगर ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिखाया, ये इंस्ट्रक्शन भले मे नॉट बी मेकिंग एनी सेंस टू यू, ये इंस्ट्रक्शन मे नॉट बी मेकिंग सेंस टू यू, बट ये समझो लोडिंग का इंस्ट्रक्शन है या ऐड का इंस्ट्रक्शन है, तो इस बड़े से इंस्ट्रक्शन को मैंने वर्ड ऐड कह दिया, that would be more readable than writing that 001 LAAX AD. ये से add, multiply, load, fetch, ये ऐसे वर्ड्स दिए तो आसान रहेगा समझने के लिए. Yes or no? Yes. तो एक बेसिक आइडिया लगाया उन्होंने. क्या किया, ये जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस है which are very difficult to understand and there is lot of scope of you making mistake. 1 0 यहाँ वहाँ हो गया, इंस्ट्रक्शन का मतलब चेंज हो गया. इंस्टेड दे डिसाइडेड लेट्स गिव न्यूमोनिक्स. न्यूमोनिक्स मतलब शॉर्टकट्स, शॉर्ट वर्ड्स टू दोस इंस्ट्रक्शंस. यानी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को एक दूसरा एक नाम से पहचानेंगे, मीनिंगफुल नेम, ऐड, मल्टीप्लाई, पुश, पॉप, डिल, जंप, ऐसे. ओके, तो दे गिव न्यूमोनिक्स टू दिस पर्टिकुलर वर्ड. और बना के तो फिर क्या हुआ, अब ये मीनिंगफुल वर्ड्स थे, जंप, सेट, दीज आर एक्चुअल कमांड्स मैन. जंप, सेट, मूव, लोड, अनलोड. Now, these codes, ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखोगे आप, तो ये किसी को भी अपना आइडिया इस मीनिंगफुल वर्ड से एक्सप्रेस करना आसान रहेगा. सो दे स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द मशीन लैंग्वेज कोड व्हिच वर प्रेजेंट इन असेंबली लैंग्वेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट एंड दे क्रिएटेड अ न्यू लैंग्वेज. ये करते करते दे क्रिएटेड न्यू लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड एज B. This language was designed by a fellow called as D.M. Ritchie and K.L. Thompson. D.M. Ritchie, Dennis Ritchie and Ken Thompson for non-numeric application systems such as systems programming. यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्होंने एक लैंग्वेज B क्रिएट किया. B क्या था, कुछ नहीं, ये जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस थे उनको उन्होंने सिर्फ न्यूमोनिक्स दे दिया. मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट देन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट कोड एफिशिएंसी ऑलमोस्ट एज गुड. ये कैसे हुआ, हाउ इज दिस कोड गोना रन एज फास्ट एज असेंबली लैंग्वेज, जबकि इंग्लिश में लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है. तो इन्होंने क्या किया, कंपाइलर लिया, जैसे आपके पास फोर्ट्रान में कंपाइलर था वैसे. यानी आप भले इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस ना हो, इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे, इंग्लिश लाइक वर्ड्स थे. तो व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड अ कंपाइलर फॉर B. यानी उन्होंने नए जनरेट स्टैनफोर्ड और MIT से डेवलपर्स को क्या कहा, आप है ना B में कोड लिखो, ये न्यूमोनिक्स यानी इंग्लिश वर्ड से कोड लिखो. एक प्रोग्राम लिखा उन्होंने कि समझो अंगद इज अ न्यू जनरेशन प्रोग्रामर, MIT से आया है, एंड आशीष हैज कम फ्रॉम स्टैनफोर्ड. इन्होंने ये न्यूमोनिक्स यानी इंग्लिश वर्ड से प्रोग्राम लिखा है. मैं वो पुराने जमाने का बंदा हूँ, तो मैंने एक कंपाइलर लिखा है.
वो देगा इंस्ट्रक्शन ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, और मेरा कंपाइलर ऐड आया तो ऐड की जगह सब्स्टिट्यूट करेगा मशीन इंस्ट्रक्शन, सब मल्टीप्लाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर मल्टीप्लाई, यानी आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके नया प्रोग्राम बनाएगा। यानी द डेवलपर विल राइट द कोड इन बी, कंपाइलर विल ट्रांसलेट दैट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड व्हाट विल रन इज अ मशीन लैंग्वेज कोड। आइडिया सिंपल है। तो द प्रोग्राम दैट वाज रनिंग वाज एट द एंड ऑफ द मशीन लैंग्वेज कोड ही रन कर रहा था। मगर लिखते समय, मॉडिफाई करते समय आपको मशीन लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं करना है, आपको मॉडिफाई करना है लैंग्वेज बी का प्रोग्राम, विच इज मोर रीडेबल देन मशीन लैंग्वेज कोड, अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्रेस करना भी आसान था इन बी लैंग्वेज रादर देन मशीन लैंग्वेज। तो आप फुर्सत से लिखो बी लैंग्वेज में, कंपाइलर उस बी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा इनटू मशीन लैंग्वेज, और रन क्या करेंगे तो मशीन लैंग्वेज। और आपको उसमें जब भी कोई मॉडिफिकेशन करना है, यू विल अगेन मेक द चेंजेस इन द बी लैंग्वेज कोड, अगेन कंपाइल एंड देन रन। तो रन करने वाला एट द एंड ऑफ द मशीन लैंग्वेज कोड ही रन कर रहा है, तो एग्जीक्यूशन तो उतना ही फास्ट रहेगा जितना आपका पहले एग्जीक्यूशन होता था। सिर्फ डेवलपमेंट टाइम थोड़ा सा आसान, डेवलपमेंट आसान हो गया। क्यों? बिकॉज अभी आपको मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स याद रखोगे, पुश, पॉप, ऐसे वर्ड आते हैं, आपके भी दिमाग में आता रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ। सेट, पुश, पॉप, जंप, ये मीनिंगफुल है अदर देन दिस इंस्ट्रक्शन दैट आई शोन यू। और हर एक इंस्ट्रक्शन का अगर मैंने मतलब समझाया 10-15 मिनट में आप आधा थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन समझ भी जाओगे कि व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन डूइंग, एंड दैट्स हाउ लैंग्वेज बी केम इनटू एक्शन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय टू फेलोज। इस लैंग्वेज का जो कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, ये केन थॉमसन ने अकेले ने कंपाइलर लिखा। दिस वर डेमी गॉड्स, ये कैसे ऐसे बंदे थे मालूम नहीं, ऐसा कोड लिख सकते थे, अकेले बंदे ने। एंड बिलीव मी, सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने, थॉमसन ने, उस लैंग्वेज का कंपाइलर लिखा अकेले में, लिटरली अकेले ने लिखा, अकेले ने पूरा कंपाइलर लिख दिया। These are tremendous guys. We call them as extraterrestrial. दुनिया से लोग नहीं है, दुनिया के बाहर के लोग हैं ऐसा कोड लिखने वाले। But they wrote that particular code, and that compiler was created. And once that compiler is ready, B language का कोड compiler translate करेगा, वापस मशीन लैंग्वेज कोड आएगा, और हार्डवेयर से काम करने के लिए वो मशीन लैंग्वेज कोड ही आपके हार्डवेयर पे रन हो जाएगा। That was language B. B, देखो B ने क्या किया, B inherited various features. उसने कंपाइलर का कॉन्सेप्ट फोर्ट्रान से लिया, प्रोसीजर लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सीपीएल से लिया, वो टाइपलेस था बीसीपीएल और स्ट्रांगली टाइप था सीपीएल, इन्होंने इसे नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बनाया। अब ये नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या है? ये बी लैंग्वेज ही क्या है? बी लैंग्वेज उन्होंने किया, बी लैंग्वेज की व्हाई वाज दिस बी लैंग्वेज क्रिएटेड? एनीबॉडी इन योर ओन वर्ड्स, ये बी लैंग्वेज क्यों क्रिएट किया गया? It was hard to understand to next generation what was that first code written. मशीन कोड, असिम right. लैंग्वेज कोड। सो टू एंड ये बी लैंग्वेज में क्या क्या था? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को उन्होंने क्या किए थे? निमोनिक्स दिए थे। निमोनिक्स मींस Short form इंग्लिश वर्ड्स, मीनिंगफुल शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे दिए थे। ओके, और वो शॉर्ट फॉर्म से शॉर्ट मीनिंगफुल वर्ड से वो इंस्ट्रक्शन क्या है हम लोग समझ सकते थे। तो व्हाइल दिस निमोनिक्स वर क्रिएटेड, न्यू लैंग्वेज वाज क्रिएटेड, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे फीचर चाहिए थे, जो फीचर नहीं था उसके लिए नए कीवर्ड्स भी उन्होंने उसके अंदर डाल दिए, नए कमांड्स भी डाल दिए टू गेट द वर्क डन। और जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, ये 3 साल चला प्रोजेक्ट, एंड बाय द टाइम दे कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दे रियलाइज जहां उन्होंने स्टार्ट किया था वो बी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन, और आज उनके पास जो बी लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन थे काफी डिफरेंट थे। तो दे डिसाइडेड, थॉट ऑफ गिविंग दिस लैंग्वेज अ न्यू नेम, एंड द न्यू नेम दैट दे गिव टू दिस लैंग्वेज इज एनबी। तो एन क्या रहेगा? एन क्या रहेगा? बी था, एन बी क्या रहेगा? अरे गेस करो, जब न्यू बी, और क्या रहेगा? तो जब गेस करने का मौका है तो कुछ भी गेस कर सकते हो, उसमें क्या फर्क है? तो न्यू बी, तो बिकॉज बी जो शुरू किया 3 साल पहले प्रोजेक्ट, और जो नया एट द एंड ऑफ द डे आ गया, ये इसमें बहुत अंतर था। व्हाट दे स्टार्टेड एंड व्हाट दे एंडेड अप व्हाइल दे ट्रांसलेट, इतना नंबर ऑफ कमांड्स बढ़ गए, तो ये काफी अलग था लैंग्वेज दैट दे क्रिएटेड। This new B is nothing but what you call today as C. Designed by Dennis Ritchie at Bell Labs about 1972 के आसपास। C was originally system language for Linux on PDP-11. PDP-11 एक मशीन का नाम है जिसपे पहली बार रन किया। It was named NB, यानी जो NB था उसी को बाद में जाके उन्होंने सोचा ये न्यू बी नहीं है, एक करीब करीब नया लैंग्वेज है, तो चलो इसे C कह देते, and so a new name was given. It was influenced by BCPL. BCPL का कौन सा फीचर इसमें इन्फ्लुएंस किया गया था? टाइपलेस। अरे टाइपलेस करके नहीं चलेगा, तो इट वाज क्रिएटेड अ लैंग्वेज व्हिच वाज नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, यानी टाइपलेस भी नहीं
और स्ट्रांगली टाइप भी नहीं, नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। अब नॉट अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है? अगर आप वेरिएबल बनाओगे इंटीजर तो उसमें इंटीजर स्टोर कर पाओगे, बट अगर आपने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया तो इंटीजर में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी वो एरर नहीं देगा, इंटीजर में इंटीजर ही स्टोर होगा, बट अगर आपने कुछ गलत स्टोर किया तो उसको कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली एंड फिर स्टोर करेगा। आपका ओरिजिनल डेटा भले लॉस्ट हो जाए, आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट इट एज वी गो अहेड, बट इट वाज अ लैंग्वेज व्हिच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बीसीपीएल। बीसीपीएल में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत कम थे एंड इसमें भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत कम रखे गए एज कंपेयर टू अल्गोल और अदर थिंग्स, बिकॉज उनको याद था, पता था कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लर्न, और जो चीज लर्निंग के लिए डिफिकल्ट है डेवलपर्स यूज नहीं करेंगे, और डेवलपर यूज नहीं करेंगे तो ऐसे लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है। And this language became extremely popular across the globe because दुनिया भर में यूनिक्स दिया जा रहा था, और यूनिक्स मशीन पे बाय डिफॉल्ट कौन सा लैंग्वेज आता था? तो सी, रादर पूरा यूनिक्स ही सी में लिखा गया था, यानी ऑपरेटिंग, यानी सी बनाया किस बात के लिए? टू क्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सी इज अ लैंग्वेज मेंट फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग रिक्वायरिंग टू डिजाइन सॉफ्टवेयर व्हिच रिक्वायर्स इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। तो जितने सारे सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए जो फीचर चाहिए वही सी लैंग्वेज में, बिकॉज वो शुरू भी वही से हुआ उसकी स्टोरी। तो सी इज अ लैंग्वेज primarily for system programming, not that I cannot develop applications, I can develop applications, but बनाया क्यों गया? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस बनाने के लिए। पहला सॉफ्टवेयर जो सी में लिखा गया है that itself was your operating system software through which we can interact with your OS हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, यानी इस लैंग्वेज में वो सारे फीचर है which gives you power to interact with the हार्डवेयर, जो बाकी लैंग्वेज जावा पाइथन ये नहीं दे पाएंगे, और अगर वो दे रहे हैं तो वो सी का इस्तेमाल करके दे रहे हैं। दैट मीन्स पाइथन के थ्रू अगर आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इट इज इंटरनली सी दैट इज रनिंग। जावा के थ्रू अगर आप मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं तो जावा के अंदर से सी को कॉल किया गया है, वो खुद नहीं कर सकता है। तो सी इज अ लैंग्वेज which has all the features which are required for you or to facilitate your interaction with the hardware। यानी हार्डवेयर से कोई, यानी ओएस से इंटरेक्ट करते हुए हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, वो लो लेवल कोई काम करना है, वही तो है ना, ओएस वाज ऑल लो लेवल ऑपरेशंस, और उसी को करने के लिए बी बनाया गया। बी का ही नया नाम एनबी था, एनबी वाज रीनेम्ड एज सी एंड इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 1970s में आया लैंग्वेज है, इवन बिफोर यू आर ऑल बोर्न। ओके, तो तब का लैंग्वेज है, लॉन्ग टाइम बैक, समटाइम्स अराउंड व्हेन योर father and mother may have been born, tab ka language hai, and it is still there in the market. There must be something very powerful feature in this language which has made it survive for such a long period of time. It's a general purpose computer programming, यानी मैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ और बाकी बिलिंग एप्लीकेशन बनाना ऐसे किसी काम के लिए भी यूज कर सकता हूँ। कहाँ डेवलप किया गया? बेल लैब्स में। वेरी वाइडली यूज प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑफ ऑल टाइम्स, यानी आज दुनिया की किसी भी लैंग्वेज से एक साथ कंपेयर करोगे और कोई लैंग्वेज नहीं है दूसरा विच हैज सर्वाइव्ड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लैंग्वेजेस आते हैं और चले जाते हैं। द वन ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेजेस दैट आई लर्न वाज कोबोल, आज कोई यूज नहीं कर रहा है। पास्कल कोई यूज नहीं कर रहा है। फोर्ट्रैन कोई यूज नहीं कर रहा है। दिस इज वन ऑफ दोस लैंग्वेजेस विच हैज सर्वाइव्ड फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके इतना और किसी लैंग्वेज ने नहीं सर्वाइव किया। दूसरा एक लैंग्वेज इसके करीब आता है कोबोल, 2000 तक वो यूज किया जा रहा था, बट और कोई लैंग्वेज नहीं है। जावा अभी की बात है, जावा सी के बाद 20 साल के बाद आ गया, अभी है। पाइथन 20 साल यंगर है सी से, kind of thing. So C has survived for such a long period of time. There are millions and millions of lines of code that are there across all systems. And I'll tell you, जो पुराने कोड थे वही आज भी रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं on different machines. So it's most widely used procedural language of all time. So I'll be explaining you what is procedural languages later. Influenced programming language like C++, Python, Java, सब पे influence है. Best known for its speed, stability and near universal availability. स्पीड तो आप समझ सकोगे बिकॉज आप सी का कोड रन ही नहीं करते। मैंने क्या कहा, सी लैंग्वेज का कोड लिखोगे, कंपाइलर उसे ट्रांसलेट करेगा और रन क्या होगा, वो ट्रांसलेटेड कोड यानी मशीन कोड ही रन होगा। तो मशीन कोड रन करेगा तो फास्ट ही रन करेगा। स्टेबल है बिकॉज यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग द हार्डवेयर। नियर यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी, अब ये नियर यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है नियर यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी यानी ये लैंग्वेज हर जगह अवेलेबल है। ना, इस लैंग्वेज को समझने वाले प्रोग्रामर्स दुनिया के हर एक कोने में अवेलेबल है। आप भी अभी ये लैंग्वेज पढ़ने आए हो। आज लैंग्वेज के क्रिएशन के 50-60 साल बाद, 1970s की बात है, वो 30 साल और ये 50 साल बाद आप लैंग्वेज क्रिएट करने के बाद आप ये लैंग्वेज पढ़ने आ रहे हो। दैट मीन्स
आप अगर पढ़ रहे हो तो पहले भी कई लोगों ने पढ़ा है, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी कंप्यूटर साइंस कोर्स में देखिएगा आपको लैंग्वेज सी दिखाई देगा। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन, आज MIT के कोर्स में भी जाते हैं, CS का कोर्स, इलेक्ट्रिकल का कोर्स, यू विल ऑलवेज फाइंड सी लैंग्वेज। Why? Because it is, we call it as mother of all languages, and once you learn the language, you not just understand how to code, you also understand how machines work. ये मशीन के इंटरनल आपको समझाने में हेल्प करेगा। आज भी हमने कितने सारे इंटरनल बात की, लोड केस क्या करता है, लोडर क्या होता है, OS कैसे रन करता है, OS क्या है। तो दिस इज वन लैंग्वेज जहां ये सब कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। बाकी लैंग्वेज सीखते समय ये सब कुछ डिस्कस करने का हमें मौका नहीं आता है। सम ऑफ यू लर्न पाइथन विद मी, बट पाइथन सीखते समय इतना लो लेवल पे नहीं जाके हम लोग बात कर सकते हैं जितना हम लोग सी में कर सकते हैं। तो कब क्रिएट हुआ है लैंग्वेज? 1972। इट्स ऐसा ये है ना, जैसे आज मूवी रिलीज हुई, ऐसा नहीं होता है, ये समवेयर अराउंड 1972 आता है, इवॉल्व होते गया, बी को ही तो NB कहा गया और NB को ही तो C कहा गया। तो इट वाज फ्रॉम 1967 से लेकर 1970 तक वो C था जिसको B पहले NB कहा जाता था, जो B था पहले। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसे एक दिन लॉन्च वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। डेनिस रिची इज गिवन क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज। ऐसा क्यों है? एनीबॉडी हैज एन आइडिया? व्हाइल ये लैंग्वेज कहाँ से आया? B से आया। B से कंपाइलर किसने लिखा था? केन थॉमसन ने लिखा था। When US gave the Alan Turing Award for creation of the C language, इन दोनों को अवार्ड दिया गया, and this award was divided between both of them, दोनों को दिया गया था। यानी केन थॉमसन had equal credit for development of this language। स्टोरी ऐसी भी है, early days we had two flavors of C language, एक केन थॉमसन का C था और एक डेनिस रिची का भी C था। बट आप सबने डेनिस रिची का नाम सुना रहेगा, केन थॉमसन का नाम आपने शायद ही सुना रहेगा। तो एनी आइडिया एज टू व्हाई केन थॉमसन became so popular? Oh, sorry, Dennis Ritchie became so popular. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा who created C language? Dennis Ritchie, which is half right, half correct. Dennis Ritchie and Ken Thompson, because compiler तो Dennis Ritchie ने नहीं लिखा था, Ken Thompson ने लिखा था। क्यों? मगर वो डेनिस रिची का नाम क्यों आ गया और केन थॉमसन का नाम क्यों नहीं आया? Why do lot of text books, local text books, तो हर कोई सिर्फ डेनिस रिची का नाम लेते हैं। Ken Thompson. Okay, let me explain. One of the first book that was written for C language was a book called as KNR. Okay, K and R. NCC was the first book that was written for C language. पहले बुक्स ही नहीं थे C language के। तो ये बुक लिखा था डेनिस रिची और डेनिस रिची एंड ब्रायन कैरनहन, ये दो ऑथर ने बुक लिखा था। अब जिस किसी को सी पढ़ना है, वो उस जमाने में एक ही बुक था सी का और वो था डेनिस रिची का बुक। तो डेनिस रिची का नाम तो दुनिया भर में फैल गया। एंड देन ओवर अ पीरियड डेनिस रिची अडॉप्टेड हिज पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेयरएज केन थॉमसन स्टिक टू ओनली लिनक्स। और जैसे विंडोज पॉपुलर होता गया, वैसे केन थॉमसन की जगह डेनिस रिची आल्सो वेंट ऑन टू बिकम वेरी वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। So Dennis Ritchie, although given credit, that's not wrong. That's unjust on part of Ken Thompson. He should also be given credit for development of this language. उसका भी efforts contribution इतना ही था। तो आपको अभी यहाँ क्या पढ़ने आए हो आप? कौन सा लैंग्वेज पढ़ने आए हो everybody? C language? Yes or no? Yes, कब बनाया गया? 1970s में बनाया गया। 1970। इतना पुराना लैंग्वेज पढ़ना चाहोगे आप? Yes. नहीं, दिस इज आउटडेटेड। यानी अगर वहां से अगर आप अटके हो तो दैट्स नॉट गुड इनफ, बिकॉज लैंग्वेजेस आर नॉट डेड, दे कीप ऑन इवॉल्विंग। लैंग्वेज आर नॉट डेड, दे कीप ऑन इवॉल्विंग। ये जो 1972 था वो केन एंड आरसी था, जिसे हम लोग क्लासिक की सी कहते, सी एज ओरिजिनली डिस्क्राइब। इसमें कई सारे चेंजेस हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पहला बुक लिखा गया था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय ब्रायन डब्ल्यू कैरनहन एंड डेनिस रिची। ये बुक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज ये बुक इज मोर लाइक गोल्डन रूल्स फॉर अस। रूल्स, I will not suggest you this book to learn the language. I will suggest you this book to check for the rules of the language. कई बार है ना, I tell you something and आपके लोकल बुक्स में तो कुछ अलग ही रहेगा, बकवास है लोकल बुक्स। I take it on means रिकॉर्ड पे कहता हूँ, ये जो मार्केट में लोकल टेक्स्ट बुक्स है ना, बकवास है, गलत इंफॉर्मेशन से। और अगर आपको कभी मुझ पे डाउट आता है तो कहाँ चेक करना है? जिसने सी लैंग्वेज क्रिएट किया उसके बुक में देखो ना क्या लिखा है। वो तो गलती नहीं करेगा, आई में कमिट मिस्टेक, लोकल ऑथर में कमिट मिस्टेक। क्या ब्रायन कैरन और डेनिस रिची वही गलती करेंगे अपने बुक में? No. वो तो चांस नहीं है। जिसने क्रिएट किया वो क्या गलती करेगा? तो जब भी यू आर इन डाउट कि अरे ऋषि सर ने कुछ कहा है
और ये तो हमारे बुक में कुछ अलग कह रहा है, ये बंदा तो कुछ और कहे जा रहा है। जब भी आपको क्रॉस चेक करना है ना, गो बैक टू डेनिस रिची, एंड डेनिस रिची का ये बुक है KNR, वहां देखो, यू विल नॉट फाइंड मी कॉन्ट्रडिक्टिंग टू व्हाट ही सेज. I may add on to that, but I'll never contradict to that particular book, because that is a Bible for us, that's a Gita for us, that's a Quran for us. But ये Bible, Quran, Gita ना समझना बहुत मुश्किल होता है, because वहाँ ना rules दिए होते हैं. So this book is not meant for learning the language. This book is only to know the rules of the language. So whenever in doubt, see the rule, keep it closed. Don't rely on this book to understand the concept. This book doesn't teach the language. It's like a manual of the language. It doesn't teach you the language. It tells you all the rules of the language. So I'll share this book with you. But जैसे मैंने कहा, उसी काम के लिए उसका यूज करना है. Don't think about learning the language from this book. But ये तो क्लासिक सी था, ये पुराना सी है. Then came in ANSI. थोड़ी देर मैंने क्या कहा, Brian Keranen and Dennis Ritchie, they went on to adopt to Windows operating system, and they created their own flavor of C. Then Ken Thompson stick back to Unix, and he had his own flavor of C. तो मार्केट में दो C. तो अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं तो 95 क्या 96% ऑफ द कोड एक जैसा ही था. थोड़े बहुत चेंजेस डेनिस रिची के सी में थे, वो केन थॉमसन के सी में नहीं थे. जो केन थॉन के सी में था, जो डेनिस रिची सी में नहीं था. अब है अंगद, he writes a code in Dennis Ritchie C, and Ashish is his friend, colleague who writes a code in Ken Thompson C. दोनों कोड को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज एक इंस्ट्रक्शन एक में है तो दूसरे में नहीं है. थोड़े बहुत थे, मिसमैच होता था. एंड लैंग्वेज बिकेम सो वेरी पॉपुलर that the international committee, American government intervened. American government, because ये इतना पॉपुलर हुआ था, इतना सारा उनका मिलिट्री का कोड उसमें लिखा गया. आज भी वही है, जो स्पेस शटल जाता है उसका कोड आज भी सी में है. 1960s में 67 में they went to the moon, उसका कोड भी सी में था. अब अगर उन्हें सी was very widely used in those codes. अब अगर वो कोड यूज किया गया है और एक कंपनी के पास ये इस कोड का कंट्रोल है, AT&T Labs, अमेरिकन गवर्नमेंट थॉट इट्स अ रिस्क टू द कंट्री, उनके कंट्री को. क्यों? बिकॉज ये लैंग्वेज में उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए तो उनके वो स्पेस शटल प्रोग्राम्स का वगैरह क्या होगा. सो दे टुक ओवर द कंट्रोल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी कॉल्ड एज AT&T Bell Labs, एंड दे हैंडेड, जैसे अपने यहाँ इंडिया में ISI है. ISI, व्हाट डज ISI डू? एनीबॉडी? ISI, बॉम्बे बम ब्लास्ट, दिल्ली का ब्लास्ट. वो पाकिस्तान का ISI नहीं कह रहा, इंडिया का ISI कह रहा हूँ. किसने देखा ISI? टीवी पे ऐड देखा रहेगा, ग्राहक जागो, ISI सिंबल देखो, देखा है कि नहीं ऐड? है ना. इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स है, जो आपके स्टैंडर्ड्स को बताता है, वेट का नाप बताएगा, ये सब स्टैंडर्ड सेट करते हैं. ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. वैसे अमेरिका का एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है कॉल्ड एज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये दोनों को कहा, या कंपनी को कहा, अब सी आपका नहीं है, सी अमेरिकन गवर्नमेंट का है. एंड दे गेव दिस पर्टिकुलर कंट्रोल टू दिस ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, टू क्रिएट वन स्टैंडर्ड सी. So instead of having multiple flavors of C, American government intervened and created one C called as ANSI C. During 1970s and 80s, versions of C were implemented on a wide variety of mainframes, mini computers and microcomputers. अलग-अलग मशीन पे अलग-अलग C. ना ये तो मुश्किल था, कौन कैसे अलग-अलग C याद रखेगा, एक ही C चाहिए था. So this American National Standard Institute, ANSI, formed a committee to establish standard specifications of C, often referred to as ANSI C या C89. यानी स्टैंडर्ड सी हमारे पास है ANSI कॉल्ड एज C89, बिकॉज 1989 में वो स्टैंडर्ड्स पब्लिश हुआ, पहली बार आया, जब अभी मल्टीपल फ्लेवर सी नहीं, एक ही सी मार्केट में, एक ही सी, ANSI मतलब स्टैंडर्ड सी. दैट मीन्स मेन फ्रेम का सी अलग, माइक्रो कंप्यूटर का सी अलग, मेन लैपटॉप का सी अलग, डेस्कटॉप का सी अलग, ऐसा नहीं, एक ही सी जो हमें सीखना जरूरी है. तो आपको क्या पसंद है, क्लासिक सी पढ़ना चाहोगे या ANSI पढ़ना चाहोगे? Those who for classic C say yes, those who for ANSI say no. अरे कहो, कुछ तो कहो, सो मत जाओ. I can teach you both C. मैं क्लासिक C भी पढ़ा सकता हूँ और ANSI भी पढ़ा सकता हूँ. आपको कौन सा पढ़ना है, ANSI या क्लासिक? Yes, tick for classic and no for ANSI. Everybody has to respond. बिकॉज हम लोग आपके हिसाब से सिखाएंगे. ओके,
तो मेजॉरिटी, अरे एक भी नहीं क्लासिक सी के लिए। इम्पोर्टेंट कौन सा है? इम्पोर्टेंट कौन सा है वो आप बताओ ना, आपको क्या चाहिए? आपको स्टैंडर्ड सी चाहिए जो हर जगह हर मशीन पे काम करने के लिए एक ही सी चाहिए, या अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग सी पढ़ना है, अलग अलग टाइप के हार्डवेयर के लिए अलग सी पढ़ना है? Okay, but I'll neither be teaching you NCC, neither I'll be teaching you classic C, because ये NCC आ गया 1989 में, but 1990 में a very big revolution happened in the field of computing. क्या था 1990 में? ऐसा क्या हुआ जहां दुनिया चेंज हो गई? 1990-91, anybody? नहीं, 1990 में आ गया इंटरनेट। ओके, और नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, हार्डवेयर में बहुत चेंजेस हो गए। द अर्लियर जब हार्ड डिस्क नहीं था, बाद में हार्ड डिस्क आना शुरू हो गया। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हार्ड डिस्क वाज इन द ईयर 1994 के समय मैंने पहली बार हार्ड डिस्क देखा। उसके पहले हम लोग फ्लॉपीज पे काम करते थे। एंड मशीन चेंज, हार्डवेयर चेंज, मशीन बिकेम वेरी पावरफुल, मशीन बिकेम वेरी कॉम्पैक्ट, बहुत फास्ट काम करने लगे मशीन। तो स्टोरी चेंज्ड, हार्डवेयर चेंज्ड, मशीन बिकेम पावरफुल, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ गया। एंड टू मेक यूज ऑफ दैट न्यू चेंजेस दैट हैज हैपेंड टू सी, लैंग्वेज में भी चेंज करने की जरूरत पड़ी। बट इवन बिफोर दैट ये जो एनसीसी था, यह एक प्रॉब्लम हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये आईबीएम से सी का कंट्रोल क्यों लिया? चलो जल्दी बताओ, वी नीड टू वाइंड अप एंड स्टॉप फॉर टुडे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एनसीसी से आईबीएम से कंट्रोल क्यों ले लिया? कम ऑन याद रखो, स्टोरी बताई मैंने। अजय, येस सर. का घेतलं एनसीसी? अमेरिकन गव्हर्नमेंटने का घेतलं ते? सर ते ऑपरेट करायला ऑपरेट करायला नाही, अमेरिकन गव्हर्नमेंटला काही काम नव्हतं की त्यांनी अजून ते घेतलं, चला नाही. ऑपरेट करू? ते नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन, त्यांना सगळ्यांना अवेलेबल नाही. यस, एनीबडी एल्स? रिस्क वाटत होते सर. रिस्क वाटत होते बिकॉज मेजर एप्लीकेशन कहाँ थे उनके? मिलिट्री और साइंटिफिक एप्लीकेशन थे अमेरिकन गवर्नमेंट के। या उस जमाने में सब लोग सिर्फ मिलिट्री और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए सी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब इतना सारा कोड, मिलिट्री का और साइंटिफिक एप्लीकेशन का कोड सी में क्रिएट किया गया है, वो एक कंपनी के पास उसका कंट्रोल रहेगा। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है, अमेरिकन गवर्नमेंट थॉट इज अ थ्रेट, सो दे टुक ओवर द कंट्रोल, क्रिएटेड वन स्टैंडर्ड सी कॉल्ड एज एनसीसी। अब मुझे बताइए, क्या उस जमाने में क्या सिर्फ अमेरिका ही कोडिंग कर रहा था? यूरोप में, जापान में, इंडिया में कहीं और कोडिंग नहीं हो रहा था क्या? द इंटरनेशनल कम्युनिटी वर फ्यूरियस एट दिस। हाउ कैन वन कंट्री हैव अ कंट्रोल ओवर इट? कल अमेरिका कोई चेंज करे, जर्मनी क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, यूके क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा? एंड देन देयर वाज अ अप्रोर कि अरे अमेरिकन गवर्नमेंट शुड नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर सच ए इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। सो एनसीसी वाज डिसबैंडेड, डिसकंटिन्यू किया गया, एंड केम इन आईएसओसी। जहां एनसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वहां आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, आईएसओ। आज कहा था ना ISO 9000, वैसे ISO। दिस ISO adopted the same NCC। INC ने इतना बढ़िया काम किया था, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल पहले IBM के पास था, IBM के पास से अमेरिकन गवर्नमेंट के पास आ गया, अमेरिकन गवर्नमेंट के पास से ISO के पास आ गया। ISO was an international body। International means every country will have, it's now available for every country। अमेरिकन गवर्नमेंट cannot dictate उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो C89 को ही C90 कहा गया। They are both the same language। C89 and C90 कुछ अलग नहीं है, सिर्फ ओनरशिप अलग है। C89 was controlled by NC and 90 was controlled by ISO। Rather, मैं अगर आपको बताऊं, दिसंबर 1989 में C89 आ गया एंड जनवरी 1990 में ISO 90 आ गया। तो क्या 10-15 दिन में, एक महीने में ये सारा काम कर सकते थे क्या? उन्होंने सिर्फ एनसीसी को ही नया नाम दिया ISO, मालिक चेंज हो गया, नथिंग मोर देन दैट। ANSI, like other national bodies, no longer develops C standards independently, but refers to ISO C standard। तो आपको क्या पढ़ना है? क्लासिक C, NCC या ISO C? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला C या अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला C? इंटरनेशनल C पढ़ना है, करेक्ट। अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या पढ़ के गए? बट देन वर्ल्ड चेंज्ड। मैंने कहा इंटरनेट का जमाना आ गया, machines changed and the language also had to change। And so new versions of C came into picture। C99 introduced several new features। C99 is most part backward compatible with C90, but stricter in some ways।
तो ये 90 के जैसा है बट कुछ स्ट्रिक्ट है, नए फीचर्स आगे है C99 में, ऑलरेडी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एज एक्सटेंशन ऑन सेवरल सी कंपाइलर्स, और दुनिया के सारे कंपाइलर्स आज C99 को सपोर्ट करते हैं। सन स्टूडियो कंपाइलर नाउ सपोर्ट्स मेनी और ऑल फीचर्स ऑफ C99। तो आप कौन सा सी पढ़ना चाहोगे, 95, 99, 90, 89 या क्लासिक सी, कौन सा सी पढ़ना चाहोगे? चलो त्याच्यावर सर अजून फीचर आलेला सर. C99. ओके C99 अब तक के स्टोरी पे तो C99 ओके, बट देन इन द ईयर 2001 केम इन C1X और 2007 में आ गया C1X। ओके, स्टैंडर्ड कमिटी अडॉप्टेड गाइडलाइन टू लिमिट अडॉप्शन ऑफ न्यू फीचर। अब C1X में उनको याद आई अल्गोल की, बिकॉज जितने नए फीचर्स ऐड करते जाएंगे क्या होगा, याद करो अल्गोल का प्रॉब्लम, जितने नए फीचर ऐड करेंगे तो क्या होगा, बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और अगर कोई लैंग्वेज बल्कि होता है पढ़ना, सी का पॉपुलैरिटी इज बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। द नंबर ऑफ कमांड्स व्हिच वर देयर इन ओरिजिनल सी वर ओनली 32 कमांड्स, और आजकल के सारे एडिशन करके भी 50 के ऊपर नहीं जाते। 30, 40, 50 कमांड्स याद रखना आसान है या नहीं है? और अगर नंबर ऑफ कमांड बढ़ते जाए, अल्गोल हैड फेस्ड द सिमिलर फेथ कि अच्छा लैंग्वेज था, कमांड्स इतने ज्यादा थे, पढ़ना मुश्किल था, तो कम्युनिटी ने डिसाइड किया अब कोई ज्यादा फीचर्स ऐड ऑफ नहीं करेंगे लैंग्वेज में, लैंग्वेज के फीचर को एक्सटेंड करेंगे बट मेजर चेंजेस नहीं करेंगे टू एंश्योर द लैंग्वेज रिमेन सिंपल, बिकॉज सिंप्लिसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर सक्सेस ऑफ सी लैंग्वेज। But there is one community, I'll just take 2 minutes and stop. There is another C that is there in the market, GNU-C. Why am I mentioning this? ये GNU-C है ना, ये this is not a standard C. It is always ahead of standards. ये हमेशा standards के आगे वाला C होता है। एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो ये C बनाती है, ये हमेशा स्टैंडर्ड्स के आगे होता है। यानी आपका स्टैंडर्ड 10 फीचर देगा तो ये 15 फीचर देगा, इसके अंदर कई सारे फीचर्स अवेलेबल है। बट इसका मेंशन मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ओवर ए पीरियड मैंने क्या देखा है, आज जो GNU-C का सबसे पॉपुलर फीचर होता है ना, वो फ्यूचर में C में आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लर्न दिस, बट यू शुड बी अवेयर कि ऐसा भी कोई C है GNU-C, and GNU-C is a non-standard C. It gives you several more features than what standard C provides. But we should stick ourselves only to standard C and not go ahead exploring the other C language. Because ये GNU-C वगैरह हम लोग अगर पढ़ भी लेते हैं ना, तो वो फीचर हमारे सारे कंपाइलर पे काम नहीं करेगा, और जो कंपाइलर पे काम नहीं करेगा, ऐसा सारे कंपाइलर्स पे काम नहीं करेगा, ऐसा कोड करके फायदा क्या है? Because then you will not be in a position to run that program on every machine. तो ये पॉसिबल नहीं है। But then over a period some changes happened in this language as well. 2018 में C17 भी आ गया था। ओके, तो 2020 में 23 में C2X भी आने वाला है, अगले साल C2X भी आने वाला है। तो आपको क्या पढ़ना है, C2X पढ़ना है, C17 पढ़ना है, C99 पढ़ना है, 89 पढ़ना है, या क्लासिक C पढ़ना है? अभी एक फाइनल आंसर बताइए, अगले साल आने वाला C पढ़ना है, या 18 में आया हुआ C पढ़ना है, या ओरिजिनल C पढ़ना है? मला चॉईस दिली पाहिजे, मी सगळे शिकवेल, आता शिकू कुठलं, तुम्ही सांगितलं पाहिजे मला 2023 मध्ये पुढच्या वर्षी येणारे C आता शिकायचे का आपल्याला, 2018 मध्ये आलेले C शिकायचंय का, 99चं C शिकायचंय का, 95चं शिकायचंय का C1X 2007चं C शिकायचंय? विच वन? कम ऑन क्विक, एनीबडी कैन टेल मी। हशीबा, कौन सा C सीखना है आपको? हशीबा, हो आप वहां? यस सर। कौन सा C पढ़ना है आपको? 30 अगले साल आने वाला C पढ़ना है, या पहले वाला C पढ़ना है? पहले वाला। 2011 में भी 99 के बाद C11 भी आया है 2011 में, क्या वो पढ़ना है क्या? 2011 का, 11 का, 17 का, 23 का, या 99? 11, 17, 23. Pardon? 11, 17, 23. Okay, 11, 17, 23. And I will not be teaching you 11, 17 and 23 because they are not adopted by the industry. जो इंडस्ट्री यूज नहीं कर रही है वो हम लोग नहीं सीखेंगे, बिकॉज जब आप मार्केट में जाओगे, जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट फीचर है वही हमें सीखना है। तो आवर कोर्स इज ऑल अबाउट C99। आप बोलोगे सर इतना पुराना, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज बोर्न। अरे मगर वही C पॉपुलर है, C99 वाला। तो हम लोग C99 पढ़ेंगे, एंड इन बिटवीन आई विल टेल यू अबाउट C11 में क्या आया है, C17 में क्या आया है, वो फीचर बताऊंगा। बिकॉज आज भले ही C11 पॉपुलर नहीं है, आज भले ही C17 पॉपुलर नहीं है, बट ओवर अ पीरियड नेक्स्ट 5 इयर्स में शायद C11 पॉपुलर हो जाए या C17 पॉपुलर हो जाए, तो मैं उसके फीचर्स पढ़ाऊंगा
बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बट अपना फोकस, अपना प्रॉमिस इज टू कंप्लीट C99. तो आवर कोर्स इज अबाउट C99. सो इफ समबडी आस्क्स यू सी पढ़ रहे हो क्या, कौन सा सी पढ़ रहे हो, तो C99 पढ़ रहे हो, और उनको बताइए सी के कई सारे फ्लेवर है, क्लासिक सी, ANSI सी, ISO सी, ANSI सी was C89, ISC सी was C90, C95 था, C99 था, C1X था 2007 में आया हुआ, C11 था 11 में आया हुआ, 17 था, 2X जो 23 में आने वाला है, बट वो फीचर्स अभी तक इंडस्ट्री में यूज नहीं कर रहे. अगर कोई इंडस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं कर रहे तो उस पर हम लोग ज्यादा एम्फोसिस नहीं करेंगे, बट वी विल टच अपॉन दोस फीचर्स. मैं आपको बताऊंगा कोई रूल में मेजर चेंज हुआ रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट अपना कोर्स प्राइमरी विल बी ऑन C99. So that was about history of C that we had to discuss. Next session when we meet, we'll be talking about features of C. यानी C लैंग्वेज ऐसा ही क्यों है, वहां हम समझेंगे कंपाइलेशन वगैरह कैसे करते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, C लैंग्वेज के फीचर्स क्या है, ऑल दोज बेसिक थिंग्स विल अंडरस्टैंड. प्रोग्राम को डेवलप कैसे किया जाता है C में. मैंने हशीबा से एक क्वेश्चन पूछा था, सर हशीबा हाउ इज द प्रोग्राम, आप C का प्रोग्राम कैसे रन करते हो, तो वो डिटेल में पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, हाउ डू यू रन द प्रोग्राम. सो ये 2 सेशंस रहेंगे हमारे टू अंडरस्टैंड features of C language, and that is what we'll take up next time when we meet. I hope you have understood what we have discussed. This was just a history, so for you to know क्या क्या है पिक्चर में, ये पूरा पता चल गया, अब ये बाजू में रख सकते हैं. But you can go to the history later and you understand C ऐसा ही क्यों है, बिकॉज बनाया गया है हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए. तो कोई डेटाबेस एप्लीकेशन अगर आप C में क्रिएट कर रहे हो तो गलत है, बिकॉज उसमें वो फीचर डाले हैं जो उसको पावर देते हैं, एबिलिटी देते हैं टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर. C is a language created for system programming, interacting with hardware. वो powerful features उसमें है. In the process, you'll understand how machines work. So that was all about history of C language. मैंने पूरी history आपके साथ share की है. Notes आपको मिल जाएंगे once you take an admission. So that's all for today's session. I hope you understood. Feedback दीजिएगा, yes or no, समझ में आया नहीं आया. कोई question है तो पूछेगा. I am here to answer. फीडबैक चाहिए उतना तो दे कर सकते हैं आप, यस और नो बता सकते हो. ओके, सो थैंक यू ऑल. थैंक यू हशीबा. ओनली हशीबा लाइक द लेक्चर. बाकी लोगों ने कहा ठीक है सर, समझाया, अच्छी बात है. हशीबा इज गिवन थम्स अप. मंदा थैंक यू. हा इतकं जीव तुला शिकवतो आणि त्या नुसतं टिक करून चालले. ओके श्वेता थँक यू. ओके मेनी ऑफ यू. ओके थँक यू श्वेता. थँक यू आदित्य. Angad, thank you. Everybody, thank you. Okay, Mahesh also thank you. It's like session has to be interactive. It's not just even small thumbs up makes sense. Classroom मध्ये असेल ना, I can make you from your faces. Now online में आप लोग वीडियो तो ऑफ रख देते हो, तो कम से कम रिएक्शन तो दे दो. अगर वीडियो ऑन रखोगे तो और भी बेहतर है, तब मैं आपको पहचान भी पाऊंगा. आप में से सिर्फ 2 लोगों को मैं मिला हूँ, बाकी लोगों को तो जानता भी नहीं हूँ. तो keep your videos on sometimes and we interact. And ask questions, because वही लोग याद रखते हैं. अभी गौरव याद रहेगा मुझे, मंदार याद रहेगा, भले क्वेश्चन पूछा हो नहीं समझ में आया कहा उसने, आशीष याद रहेगा. तो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इंटरेक्शन जरूरी है. तो इंटरेक्ट करो, डाउट्स क्लियर करवा लो, एंड देन लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग. अगर आप क्वेश्चन भी पूछते हो ना, सर ये समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हो समझने की. तो पैसिवली मत अटेंड कीजिएगा सेशन. नोट्स भी लिखिएगा. आज मेल डाला है मैंने, 1 पेज का नोट डाला है, नोट्स कैसे लेने. डू रीड दैट. मैंने जो उन्होंने लेक्चर मिस किया उनके लिए लास्ट लेक्चर का वीडियो डाला है, ये भी लेक्चर का वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा. सो वॉच द वीडियोस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन. वी डिस्कस फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज एंड 2 सेशन रहेंगे, 2 या 3 सेशन होंगे. उसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंपाइल अ C प्रोग्राम, रन कैसे करते हैं C प्रोग्राम. उसका एक्चुअल फैक्ट्स मैं आपको साथ शेयर करूंगा एंड विच विल ब्लो योर माइंड. जो आप कॉलेज में देखते हैं कुछ नहीं बताते आपको, नोबडी, एंड इट्स अ चैलेंज. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप सेशन अटेंड कीजिएगा एंड देन अंडरस्टैंड, your understanding will improve about what's happening when you compile the code, what's happening when you run the program. All those things I'll explain you in detail from the console itself. With that note, we stop here today. See you next time. Take care. Love you all. Bye-bye. And I appreciate you stayed back so long. अपना time को exceed कर लिया. I appreciate most of you stayed back. That's a good sign. That shows your interest in learning the language. And that's what will make you successful. देखो किसी को सब कुछ आता नहीं है, बट थोड़ी लगन रहेगी, पेशेंस रहेगा, एफर्ट्स डालोगे, यू कैन कॉन्कर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. एंड C इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टू कॉन्कर, बट फॉर दोस हु आर परसिस्टेंट, लगे रहेंगे उसके पीछे, तो होने वाला है. एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल कंटिन्यू दिस कोर्स एंड
will have a successful career in programming. Bye bye.